About thousands of years ago, human civilization inhabited on the banks of river, embarked on to create the economic occupations. Today, after thousands of years, it is undeniable that business districts, financial services and IT-enabled services sector growth add to its thriving economic expansion. India, one of the fastest developing countries in the world, is scaling new heights with productive integration of easy business provisions and fiscal transactions. Gujarat has always been a preferred investment destination because it's attributed with political stability, strong leadership, pro-business policies, vast talent pool, entrepreneurial spirit and providing a vital link in the chain of drug development is a world-class clinical research organization called Quantis Clinical. Conveniently located in the western coast of India at the Kandla Special Economic Zone, Quantis Clinical provides high-quality clinical research services to the pharmaceutical, nutraceutical and biotechnology industries globally. Quantis Clinical has custom-built, all regulatory compliant facility to conduct pharmacodynamic, pharmacokinetic and clinical endpoint studies. The facility is spread over a total floor area of over 40,000 square feet. The clinical wing has a capacity of 104 beds, divided into 5 flexible and independent clinical pharmacology units suitable for conducting mixed population studies and multiple studies at a time. There are dedicated areas for subject monitoring, dosing and sample collection. There are separate areas for dining and recreation. The subject housing areas are backed up by fully equipped emergency rooms and a 24/7 in-house ambulance to manage any emergencies. High level of security and safety of volunteers are ensured through access control and continuous CCTV monitoring. Emergency call buttons are provided on the beds and in the bathrooms. The selection of volunteers is carried out through a robust SOP-driven process for screening and documentation as per ICH guidelines. Quantis Clinical, through its team of highly experienced and trained staff, offer bioavailability and bioequivalent services, including food effect and drug interaction studies, skin sensitization and irritation studies, and glucose clamp studies. Quantis Clinical has conducted several studies with crossover, steady state, reference scaled average and replicate study designs in healthy population. Our expertise include swift processing of BENOC applications and processing CBN formalities for conducting bioequivalence studies on controlled substances. Quantis Clinical has considerable experience with oral dosage forms, transdermal patches, and implant bioequivalence studies, as well as various other routes of administration.
Qantas Clinical offers a state-of-the-art pathology lab compliant to ISO 15189, ECG and digital X-ray, assuring high-accuracy investigations for screening of volunteers and conducting post-study safety evaluations. Bioanalytical services cover development of methods, validation of methods, backed by a team of highly committed, experienced and qualified people with a cumulative experience of over 60 years. Qantas Clinical is driven by a highly enthusiastic and dedicated team of research professionals, most of them with PhD and post-graduation degrees, along with full-time experienced doctors and paramedics with expertise both in clinical phase of the study conduct as well as overall project management. Qantas Clinical is the first CRO in India to bring a complete paperless end-to-end platform to conduct clinical and bioanalytical operations. A thoroughly validated paperless, the eCRF-based system of data collection includes volunteer registration, screening, laboratory reports, check-in process, electronic data capturing of clinical data, sample management, sample storage, and sample processing at the bioanalytical. We also offer report generations, protocol development, project management, and tracking using this platform. This eCRF-based paperless conduct of the PE study offers a complete audit trail and complies to 21 CFR Part 11 requirements, thus offering transparency to the regulatory authorities. This truly gives Qantas Clinical a technological edge, which assures transparency and integrity of clients' data. All the data generated during operations are integrated through the latest IT interface and have on-site and off-site data backup. The information security management system at Qantas Clinical complies to and is certified for ISO 27001:2013. Qantas Clinical has expertise in all major regulatory submissions, particularly in the sphere of narcotics and controlled substances. Quality management system is fully compliant to and is ISO 9001:2015 certified. The Quality Assurance Unit is manned by highly experienced and qualified personnel who perform periodic internal and external audits, ensuring strict compliance to maintain quality at all times. The Quality Assurance Unit also provides independent clinical trial audit and monitoring services. Qantas Clinical is a self-supporting facility having a well-equipped, state-of-the-art bioanalytical laboratory. The facility is equipped with instruments like LC-MS, ultra-low temperature freezers, -70 degrees Celsius, refrigerated centrifuges, fume hoods, sonicators, magnetic stirrers, in-house nitrogen generator, water purification system, etc., giving it an added advantage to develop and validate methods in practically all biological matrices. A safe and secure document archival room to ensure safe archival for extended periods, as required by various drug regulation authorities. Qantas Clinical has overseas partner CROs and has a global presence with its offices located in CIS, Middle East, Africa, Europe, and Southeast Asia, and further expanding its network, enabling it to perform studies globally through its partner CROs. Qantas offers assistance and guidance to its clients for rapid conduct of clinical studies, assist in submissions and product registrations in the CIS and other countries. In a dynamically evolving sphere of healthcare research, Qantas Clinical has emerged as an effective solution provider, serving the fast-changing
and demanding needs of pharma generic manufacturers from around the world. नमस्कार। हाँ, हमने जो बात नमक की थी, यहाँ पर थोड़ा सा भी पानी गिरता है तो वहाँ कैपिलरी एक्शन से जो है वो पूरा नमक जो है सरफेस पे आ जाता है और इतना नमक का पूरा लेयर बनता है। ये जो पूरा लेयर मेरे हाथ में है ये पूरा नमक का ही लेयर है। देखिए तोड़ने में भी ये कड़क महसूस हो रहा है। तो इतना नमक जो है वो एक बार पानी डलने से हो जाता है। तो हमारी ये जो पूरी ज़मीनें हैं वहाँ पर कहीं पर भी अगर हमें कुछ भी उगाना है तो उसका माइक्रोबायल एक्टिविटी अच्छा होना चाहिए, उसके अंदर खाद अच्छी होनी चाहिए और इसके ऊपर मल्चिंग होना चाहिए। नमस्कार। आज हम लोग गुरु नानक सीक्रेट फॉरेस्ट जो कंडला स्पेशल इकोनॉमिक जोन गांधीधाम में लगाया हुआ है वहाँ पर हम लोग खड़े हैं और हमारा आज का वहाँ का विजिट है। आप देख सकते हैं कि पेड़ जो है वो बहुत ही हेल्दी है और तकरीबन इसकी हाइट है वो 10 फीट से लेके 15 फीट तक की हो चुकी है। यहाँ पर तकरीबन अलग अलग जो है वो 90 वैरायटी के जो स्पीसीज है वो लगाई गई है। इसके अंदर 30 से ज़्यादा वैरायटी ऐसी है जो बहुत ही रेयर वैरायटीज है और जो आपको भाग्य ही कहीं पर देखने को मिलेगी जंगलों में। वैसी वाली वैरायटी भी हम लोगों ने यहाँ पर डाली हुई है। ये जो पूरा जंगल है उसके अंदर तकरीबन हम लोगों ने 2 पेज के अंदर 1.5 लाख प्लांट का प्लांटेशन किया हुआ है। 2 पेज है अलग अलग उसके अंदर और आप हर एक जगह पर देख सकते हैं कि काफी अच्छी हाइट हो चुकी है, काफी ग्रीनरी हो चुकी है। इसके अलावा ये जो जमीन है वो बहुत ही खारी जमीन है, मतलब कि यहाँ से सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर नमक पकाने के जो अगार आते हैं वो सारे अगार है चारों ओर और उसके बाजू में सिर्फ 100 मीटर के अंदर हम लोगों ने ये पूरा जो फॉरेस्ट है वो डिजाइन किया है। आप दोनों तरफ देख सकते हैं कि इसकी जो हेल्थ है, हर एक पेड़ की हेल्थ बहुत ही बढ़िया है और बहुत ही अच्छी तरह से ये जो अभी ग्रो कर रहा है। इसके अंदर आप काफी प्रकार की वैरायटी आप देख सकते हैं। ये पीपल का पेड़ है, फिर ये हमारे यहाँ देसी पीपर बोलते हैं वो पेड़ है। ये जो है वो कत्था का पेड़ है, आप देख सकते हैं। ये मीठी इमली का पेड़ है। इसके अलावा इसको सेमड़ा बोलते हैं, बिना कांटा वाला सेमड़ा जिसको कॉटन भी बोला जाता है, उसका पेड़ है। इसके अलावा आप दूसरी ओर भी देख सकते हैं कि दोनों तरफ बहुत ही बढ़िया प्रकार का जंगल दिख रहा है। यहाँ से भी आप पूरा ब्यूटी उसका देख सकते हो कि इतना ब्यूटीफुल पूरा जंगल जो है वो क्रिएट हो चुका है। और ये जो पूरी जमीन है वो ये पूरी जमीन जो है वो सॉल्टी जमीन थी और यहाँ पर मुश्किल से घास उगना भी चैलेंज था। वहाँ पर ये पूरा फॉरेस्ट किया हुआ है। अनार है। तो ये सारे जो है फ्लावरिंग और फ्रूट बेयरिंग एक साल में। हाँ, एक साल में सब में फ्रूट आ गया इधर। ये देखिए ये बादाम है, देसी बादाम, इसमें भी ये फ्रूटिंग चालू हो गया। देखिए ये फूल आ गया है, अभी 1 महीने में इसमें फ्रूट आ जाएगा। ये भी अपना 1 साल का ही पौधा है पूरा, मतलब समझ लिए 26 नवंबर को हमने लगाया है, प्लांट किया है। ये पेज हमारा 26 नवंबर वाला है। 26 से 30 नवंबर के बीच ये पूरा डला है। तो काफी जगह पे ये दिख रहा है, जैसे अभी ये नेस्ट होना। हाँ, तो यहाँ तो बर्ड्स की आवाज जितनी आ रही है। बर्ड्स काफी है। इसको अरडूसी बोलते हैं, जो खांसी में और सब जगह में इस्तेमाल होता है।
पर यहाँ पर हमने देखा है कि इस अरडूसी के अंदर जितने पत्ते आते हैं उतने ही फ्लावर आ रहे हैं। तो आप कोई भी अरडूसी यहाँ पर देखेंगे तो उसमें पत्ते और फ्लावर दोनों सेम दिखाई देते हैं। ये एक हमारे लिए थोड़ा सरप्राइज वाली चीज़ है कि यहाँ पर जो फ्रूटिंग है वो काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। तो मैंने जो आपको इसके आगे का जो साइंस बताया, मे बी वो साइंस इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। तो उस वजह से इन सारी चीज़ों में 1 साल के अंदर फ्रूटिंग चालू हो चुका है। फिर से बताइए। हाँ, इसका साइंस ऐसा है फ्रूटिंग का जो हम आइडेंटिफाई कर पाए या हम समझ पाए हैं। तो उसके अंदर एक तो ये खारी ज़मीन है, तो उससे खारी ज़मीन से पेड़ों को ट्रेस मिलता है। तो ये एक पहली बात हो गई। दूसरा, हम लोगों ने यहाँ पर काफ़ी इनपुट्स डाले हुए हैं और काफ़ी मतलब कि लकड़ी का चूरा है, कोयला है। तो जो कोयला होता है वो ज़मीन को सुधारने का काम करता है। लकड़ी का चूरा डाला हुआ है। इसके अलावा जो तीसरी चीज़ हम लोग दे रहे हैं वो माइक्रोबायल है कि यहाँ की ज़मीन के जो लोकल माइक्रोब है उसको हम ग्रो करके यहाँ पर दे रहे हैं। तो हमारा मानना ये है कि खारी ज़मीन की वजह से उनको थोड़ा स्ट्रेस मिल रहा है, फूड की अवेलेबिलिटी उनको पूरी है और ऊपर से माइक्रोबायल एक्टिविटी जो यहाँ के लोकल माइक्रोब है उनकी एक्टिविटी यहाँ पर पूरी तरह से मतलब के पीक के ऊपर है। देखा जाए तो यहाँ पर जो 10⁻⁷ से लेके 10⁻11 तक की जो माइक्रोबायल एक्टिविटी मानी जाती है वो हमने प्राथमिक टेस्ट में हमने देखा है तो वहाँ तक ये पहुँच चुकी है। मतलब कि वो माइक्रोबायल एक्टिविटीज़ की पीक लेवल पे है। तो इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन है उसी वजह से ये सारे जो पेड़ है वो 1 साल के अंदर जो है वो फ्रूट देना स्टार्ट कर दिए हैं। इस पे भी आप देखिए पूरा ये पूरी टहनी है, तो ये जितना भी नया पत्ता आ रहा है सब में फ्रूट कंटिन्यू हो रहा है। मतलब कि हर जगह पर आपको फ्रूटिंग दिख रहा है। तो ये दिखने की वजह ये 3 चीज़ें, हमारे ख्याल से ये 3 चीज़ें अभी हम जो आइडेंटिफाई कर रहे हैं या हम जो समझ पा रहे हैं वो ये है। Providing a vital link in the chain of drug development is a world-class clinical research organization called Qantas Clinical. Conveniently located in the western coast of India at the Kandla Special Economic Zone, Qantas Clinical provides high-quality clinical research services to the pharmaceutical, nutraceutical, and biotechnology industries globally. Qantas Clinical has custom-built, all regulatory compliant facility to conduct pharmacodynamic, pharmacokinetic, and clinical endpoint studies. The facility is spread over a total floor area of over 40,000 square feet. The clinical wing has a capacity of 104 beds, divided into 5 flexible and independent clinical pharmacology units, suitable for conducting mixed population studies and multiple studies at a time. There are dedicated areas for subject monitoring, dosing and sample collection. There are separate areas for dining and recreation. The subject housing areas are backed up by fully equipped emergency rooms and a 24/7 in-house ambulance to manage any emergencies. High level of security and safety of volunteers are ensured through access control and continuous CCTV monitoring. Emergency call buttons are provided on the beds and in the bathrooms. The selection of volunteers is carried out through a robust SOP-driven process for screening and documentation as per ICH guidelines. Qantas Clinical, through its team of highly experienced and trained staff, offer bioavailability and bioequivalent services, including food effect and drug interaction studies, skin sensitization and irritation studies, and glucose clamp studies. Qantas Clinical has conducted several studies with crossover, steady state, reference scaled average and replicate study designs in healthy population. Our expertise include swift processing of BENOC applications and processing CBN formalities for conducting bioequivalent studies on controlled substances.
Qantas Clinical has considerable experience with oral dosage forms, transdermal patches, and implant bioequivalence studies, as well as various other routes of administration. Qantas Clinical offers a state-of-the-art pathology lab compliant to ISO 15189, ECG, and digital X-ray, assuring high-accuracy investigations for screening of volunteers and conducting post-study safety evaluations. Bioanalytical services cover development of methods, validation of methods, backed by a team of highly committed, experienced and qualified people with a cumulative experience of over 60 years. Qantas Clinical is driven by a highly enthusiastic and dedicated team of research professionals, most of them with PhD and post-graduation degrees, along with full-time experienced doctors and paramedics with expertise both in clinical phase of the study conduct as well as overall project management. Qantas Clinical is the first CRO in India to bring a complete paperless end-to-end platform to conduct clinical and bioanalytical operations. A thoroughly validated paperless, the eCRF-based system of data collection includes volunteer registration, screening, laboratory reports, check-in process, electronic data capturing of clinical data, sample management, sample storage, and sample processing at the bioanalytical. We also offer report generations, protocol development, project management, and tracking using this platform. This eCRF-based paperless conduct of the BE study offers a complete audit trail and complies to 21 CFR Part 11 requirements, thus offering transparency to the regulatory authorities. This truly gives Qantas Clinical a technological edge, which assures transparency and integrity of clients' data. All the data generated during operations are integrated through the latest IT interface and have on-site and off-site data backup. The information security management system at Qantas Clinical complies to and is certified for ISO 27001:2013. Qantas Clinical has expertise in all major regulatory submissions, particularly in the sphere of narcotics and controlled substances. Quality management system is fully compliant to and is ISO 9001:2015 certified. The Quality Assurance Unit is manned by highly experienced and qualified personnel who perform periodic internal and external audits, ensuring strict compliance to maintain quality at all times. The Quality Assurance Unit also provides independent clinical trial audit and monitoring services. Qantas Clinical is a self-supporting facility having a well-equipped, state-of-the-art bioanalytical laboratory. The facility is equipped with instruments like LC-MS, ultra-low temperature freezers, -70 degrees Celsius, refrigerated centrifuges, fume hoods, sonicators, magnetic stirrers, in-house nitrogen generator, water purification system, etc., giving it an added advantage to develop and validate methods in practically all biological matrices. A safe and secure document archival room to ensure जैसा कि सभी लोगों ने बताया कि यहाँ कोरोना पेंडेमिक इतना फैला हुआ था पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में सभी लोग परेशान थे, पब्लिकली एकदम वैसे पब्लिक पूरे परेशान थे, लेकिन यहाँ का एटमॉस्फेयर ऐसा है, इतनी फैसिलिटीज़ है, सैनिटाइजेशन, रेगुलर टेस्टिंग, थर्मल स्कैनिंग, इवन दो हमारे जो सिक्योरिटी चेक्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। कोई भी बाहर से पर्सन आता है तो उसको चेक किया जाता है, उसका इमीडिएट थर्मल स्कैनिंग होता है, उसके बाद ही एंटर किया जाता है। तो सिक्योरिटी चेक्स के दौरान हमारा कोरोना कासेज परिवार का एटमॉस्फेयर इतना अच्छा रहा कि हमको ऐसा फील ही नहीं हुआ। इवन जैसे लॉकडाउन में भी हम लोग
जैसा कि सभी लोगों ने बताया कि यहाँ कोरोना पेंडेमिक इतना फैला हुआ था, जैसा कि सभी लोगों ने बताया कि यहाँ कोरोना पेंडेमिक इतना फैला हुआ था पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में सभी लोग परेशान थे, पब्लिक। जैसा कि सभी लोगों ने बताया कि यहाँ कोरोना पेंडेमिक इतना फैला हुआ था पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में सभी लोग परेशान थे, पब्लिकली एकदम वैसे पब्लिक पूरे परेशान थे। लेकिन यहाँ का एटमॉस्फेयर ऐसा है, इतनी फैसिलिटीज़ है, सैनिटाइजेशन, रेगुलर टेस्टिंग, थर्मल स्कैनिंग, इवन दो हमारे जो सिक्योरिटी चेक्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। कोई भी बाहर से पर्सन आता है तो उसको चेक किया जाता है, उसका इमीडिएट। जैसे बताया कि यहाँ कोरोना पेंडेमिक इतना फैला हुआ था पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में सभी लोग परेशान थे, पब्लिकली एकदम वैसे पब्लिक पूरे परेशान थे। लेकिन यहाँ का एटमॉस्फेयर ऐसा है, इतनी फैसिलिटीज़ है, सैनिटाइजेशन, रेगुलर टेस्टिंग, थर्मल स्कैनिंग, इवन दो हमारे जो सिक्योरिटी चेक्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। कोई भी बाहर से पर्सन आता है तो उसको चेक किया जाता है, उसका इमीडिएट थर्मल स्कैनिंग होता है, उसके बाद ही एंटर किया जाता है। तो सिक्योरिटी चेक्स के दौरान हमारा कोरोना ये कासेज परिवार का एटमॉस्फेयर इतना अच्छा रहा कि हमको ऐसा फील ही नहीं हुआ। इवन जैसे लॉकडाउन में भी हम लोग कासेज में इतना फैसिलिटीज़ है, पूरा गार्डन्स है, तो हम लोग फुल्ली एनवायरनमेंट में बाहर घूम रहे थे। लॉकडाउन के दौरान भी हमको ऐसा फील नहीं हुआ कि हम घर में रहें। गार्डन्स में जाके इवन हमारा बैडमिंटन एरिया है उसमें प्ले कर रहे थे। अभी मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ कि कोरोना के हमने बहुत अच्छे से हैंडल किया। अभी कोरोना लगभग जा चुका है, लेकिन फिर भी हमको अभी प्रिकॉशनरी मेजर सभी भी अपना रहे हैं और अपनानी चाहिए। अभी बच्चों का भी स्कूल्स वगैरह ऑनलाइन हो रहा है, कुछ अभी ऑफलाइंस भी चल रहे हैं, तो जो एक मेंटल प्रेशर था वो अभी काफ़ी डाउन हो चुका है। काफ़ी अभी सभी अपने आप में कंट्रोलेबल कंडीशंस में आ गए हैं। अभी मैं आप सभी से पूछना चाह रहा हूँ कि हम डिफरेंट स्टेट से आए हैं, यहाँ एक परिवार की तरह से रह रहे हैं, तो अभी कासेज क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं बच्चों के हिसाब से, आप लोगों को यहाँ कैसा लगा, और परिवार ये सब गैदरिंग्स वगैरह उस सब के बारे में आप थोड़ा बताइए, अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए मैम। यहाँ पर फैसिलिटीज़ जाऊँगा मिलती हैं। यहाँ 3 ईयर होने वाले हैं अभी, और फैसिलिटी यहाँ पर बहुत अच्छी हुई है। यहाँ पर स्पोर्ट्स के लिए बहुत, बच्चों के लिए, लेडीज़ के लिए, जेंट्स के लिए, सब के लिए बहुत एक्टिविटी है। यहाँ बहुत बैडमिंटन कोर्ट, स्केटिंग ग्राउंड, चिल्ड्रन पार्क और भी बहुत सारे गार्डन बने हैं, जिम है, हेल्थ सेंटर है, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, बहुत सारी फैसिलिटी मिली है हमें यहाँ पर। और बच्चे यहाँ पर गार्डन बना है, बच्चे सेफ से इंजॉय करते हैं, हर गेम में पार्टिसिपेट करते हैं। यहाँ गेम्स होते हैं, जैसे हर साल फाउंडेशन डे पे गेम्स होते हैं, तो सब लेडीज़, जेंट्स, किड्स सबके अपने अलग अलग गेम्स होते हैं, सब पार्टिसिपेट करते हैं। और गेम्स होते हैं उसमें स्पेशली लेडीज़, मैंने तो स्कूल में ही गेम्स खेले थे। अब मैंने यहाँ पे पिछले, जबकि मैं 3 साल से यहाँ रह रही हूँ, उसके बाद मैंने यहाँ पे आके इतने सारे गेम एंजॉय किए। इनफैक्ट मैंने नहीं, पूरी लेडीज़ ने और हमारे बच्चों ने। और खो खो है, कबड्डी है, टग ऑफ वॉर है, और बैडमिंटन है, 100-200 मीटर रेस, बहुत सारे। मतलब इतना मज़ा आया हम लोगों को। ऐसा मौका शायद मे भी हमें कासेज में ही मिला है, कहीं और ना मिले। मतलब कासेज में ही आके हमें ये स्पोर्ट्स में हर तरह की चीज़ में पार्टिसिपेट करने का मौका मिला है। फेस्टिवल बनाए जाते हैं यहाँ पर, होली का, दिवाली का, जितने भी एक फैमिली की तरह। और वुमेंस डे है, अभी हमारा फाउंडेशन है, जैसे 7th को है, अभी 8th को हमारा वुमेंस डे मनाया जाएगा। मतलब बहुत सारे, इनफैक्ट सारे ही हम सारे पूरी फैमिली, कासेज फैमिली मिलके सारे जितने भी फेस्टिवल्स होते हैं हम सारे मनाते हैं। अभी जैसे हमारे कासेज परिवार के बारे में, इनकी ग्रीनरी के बारे में, यहाँ के एटमॉस्फेयर, यहाँ की फैसिलिटीज़ के बारे में हम आपको बताया। अभी सभी महिलाएं उनसे पूछना चाहते हैं, अभी वुमेंस डे है, तो वुमेंस डे के बारे में आपका क्या एक्सपीरियंस है, या पहले सेलिब्रेट करते थे, अभी कल का क्या प्रोग्रामिंग है आपका, तो उसके बारे में बताइए। First of all, happy International Women's Day to my colleague and all the women of the world. This year, the theme of International Women's Day is Women in Leadership, Achieving the
equal future in this COVID-19. जैसे कि आप देख रहे हैं, इस कोविड-19 में आधी आबादी यानी कि महिलाओं ने बहुत ही सहभागी रही है इस पैंडेमिक का सामना करने के लिए। स्पेशली हमारी कासेज महिलाओं ने यहाँ पे हमने बहुत ही सेफ्टी महसूस किया हुआ है और महिला बेहतरीन तरीके से साथ निभा रही है, चाहे वो घर का काम हो या बाहर का, वर्क फ्रॉम होम हो, ऑनलाइन क्लासेस हो। और कासेज में स्पेशली कासेज में महिलाओं ने यहाँ के एनबीसीसी वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, जो कासेज में महिलाएं काम करती हैं, हमारी सफाई अभियान महिलाएं हैं जो सफाई करती है, सफाई कर्मी, वो उन सबसे हमें बहुत ही सपोर्ट मिला है। हमारी महिलाओं ने घर का काम संभालते हुए बाहर का काम भी बेहतरीन तरीके से निभाया है। हमारी फैमिली की हेल्थ भी बाहर सेफ्टी एनवायरनमेंट में डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, सफाई कर्मी हैं, सभी ने, पुलिस कर्मी हैं, सभी जगह हमारी महिलाओं ने बहुत साथ निभाया है। पूरे विश्व में आधी आबादी यानी कि महिलाओं ने बहुत ही सपोर्ट किया है इस पैंडेमिक का सामना करने के लिए। और मैं कासेज की महिलाओं के बारे में बोलना चाहूँगी कुछ। कासेज की महिलाओं ने इस वुमेंस डे के लिए नहीं कह सकते हैं, मतलब पूरे टाइम, पूरे साल में जो है पैंडेमिक भी था, तो उन लोगों ने स्केटिंग सीखा है, बैडमिंटन सीखा है, बहुत सारे पार्टिसिपेट किए हैं। जैसे होता है यहाँ पे फाउंडेशन डे है कासेज का, ये 8 मार्च 2021 में इंटरनेशनल वुमेंस डे के दिन हम सब इंजॉय करने वाले हैं और ये दिन हम मनाने वाले हैं वुमेंस डे की तरह। नहीं, कुछ और कोई बोल दो। कासेज में वुमेंस हमारा हमने ऐसी योजना बनाई है कि इस बार जो हमारा महिला दिवस होगा, तो हम सोच रहे हैं कि इस रूपरेखा को हम इस तरह से संजोया जाए कि बच्चों को आगे बढ़ाया जाए, हम लोग कैसे अपने आप को इम्प्रूव करें। आने वाले टाइम में जैसे डे बाई डे कोरोना को देखते हुए, हर चीज़ को देखते हुए टिपिकल होता जा रहा है, तो हम चाह रहे हैं कि हम उस चीज़ के लिए थोड़ा सा अपने आप को और तैयार करें। और जैसे कि यहाँ पर आपने देखा ही है कासेज में महिलाओं को कितना ज़्यादा मोटिवेट किया जाता है। मेरे को नहीं लगता है कि इस एज में आके हम लोग भाग दौड़ ये सब करने का सोच भी सकते हैं, पर इतना अच्छा माहौल है कासेज में कि हर चीज़ पे फोकस किया जाता है। इसी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे हम अपने महिला दिवस में, और साथ ही साथ कुछ छोटी छोटी कार्यक्रम भी करेंगे, छोटी एक्टिविटी, और बच्चों से लेके बड़ों तक हम क्या सहयोग कर सकते हैं या कैसे अपने आप को इन चीज़ों में और ज़्यादा अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं, इन चीज़ों के बारे में हम कल अपने महिला दिवस पे डिस्कस करेंगे। मुझे ये वाला पार्क बहुत अच्छा लगता है, बहुत नए नए झूले हैं, ट्रैम्पोलिन भी है, स्लाइड भी है, सब कुछ है। फ्रीडम यही फ्रीडम मिला सच्ची में। ये माटी में रमन भूख रही है। उधर बोलना, क्या अच्छा लगता है आपको आरव इस पार्क में, बताओ। ये क्या अच्छा लगता है? और ये सीसो अच्छा लगता है? और झूला? और यहाँ जो सैंड पड़ा हुआ है, ये इसमें क्या करते हो? मैंने आपको देखा है बहुत सारा सैंड में खेलते हो, और ये आपकी फ्रेंड और ये और तीनों मिलके आप सैंड में बहुत खेलते हो। क्या बनाते हो उसमें? महल बनाते हो? और कितने, मैंने देखा कितने घंटे तक आप उसमें खेलते रहते हो? चलो।
About thousands of years ago, human civilization in What is it that drives the surging economy of India? साथियों अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों कर चले हम फिदा जानो तन साथियों अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों कर चले हम फिदा जानो तन साथियों अब तुम्हारे कासेज सिक्योरिटी के ये कंटिंजेंट और बिल्कुल पीछे है मदरसन सुमी सिस्टम्स लिमिटेड का कंटिंजेंट, सबसे बड़ा कंटिंजेंट। काफी सारे गेम्स में पार्टिसिपेशन रहता है इनकी तरफ से हमेशा। पिछले साल स्वच्छ यूनिट का, नॉन फार्मा यूनिट का खिताब इनके नाम था। Next in line is the contingent of Spades India Private Limited. They are the defending champion of last year's cricket tournament, led by Shri Vimal Kubadia. Next in line is the kids from Free Trade Zone Primary School, Kandla SEZ. Next contingent is from Marvel Fragrances Company. The tagline is "We smell good," and they are hoping to smell victory this time. Contingent is the KASEZ kids and ladies. Ladies and gentlemen, put your hands together for the kids. About the ladies, she gave life, she's a wife, she's a mother and she's a friend, she's a sister, a survivor to the end. Love her and adore her, she's a woman. Next contingent is custom clearing staff. They claim that they can win even when they stay in this half. This again is a pharma unit, Galactic Pharma India Private Limited. They have won the last year's Swachhta Unit Award in the pharma category. Under the leadership of Rahul Chauhan, here comes the contingent of Radhani Textiles Private Limited. They are the top exporter in the used clothing category.
Following closely under the leadership of Raju Yadav is the team from the Milak. They are the leader in intra-zone sales. They are here to win as they don't like fails. The regular participants in the cricket tournament of KASEZ Sports event. Here comes the team from Pure Chemical India Private Limited. This is a team from Pure. They are going to win the game, that's for sure. Ladies and gentlemen, the audiences, please join your hands together. Please give them a big round of applause. Our audience, please. Next contingent is from Jets Cosmetics. They are our sports fanatics. Please welcome them. The next contingent is Naveen Saxena Research and Technology Private Limited. जिस टीम में है जीत की प्यास उसे लीड कर रहे हैं मिस्टर मयूर व्यास. A big round of applause for Texpoly Impex. पूरा विश्वास है इन्हें कि जीत का और टीम को लीड कर रहे हैं श्री प्रवीण सोलंकी, the contingent from IFGL Refractories. Ladies and gentlemen, please welcome Vijay Tanks and Vessels, who are famous for their on-ground tussles. For our next contingent, they are the top exporter in the pharma category of the zone. Customers' time and resources. And further, we believe that improving your business is our business. The next team is Syndicate Printers. The question is, can they give us our fastest printers? We have continuously evolved in the concept of modularization by assembling various subsystems into modules that can integrate seamlessly. Here comes a team which is high with sports fair. Ladies and gentlemen, please welcome Unilever. Capital Food. I again request the audience to please clap a bit louder. Please, you people, please. Customers have continued to entrust us with the responsibility of delivering critical solutions that our power and team needs. Latest who are standing are requested to please occupy seats. सभी से निवेदन है कि कृपया अपना स्थान ग्रहण करें. कुछ ही देर में सबको रिफ्रेशमेंट दिया जाएगा. The kids from FTZ Primary School will perform on a song, and the song on which they are performing is Nanna Munna Rahi Hu. The performers of this dance are Chandrika Solanki, Kanchan Solanki, Kiran Gohil, Hetal Chauhan, Shobna Parmar, Janvi Nirashi, Jaideep Chauhan, Shailesh Chauhan, Jayanti Chawda, and Mehul Bhimani. Checks at site. This helps our customers focus on their core processes and listens with steam to our needs to us. All the departments had very meetings.
नमूना रही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। धूप में पसीना का बहाऊंगा जहाँ, हरे हरे खेत लहराएंगे वहाँ, धरती में भागे न पाएंगे जन्म, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम, डटे बाएं हम, नमूना रही हूँ, देश का से बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। है जमाना मेरी नई है नगल, देश को बनाऊंगा मशीनों का नगल, भारत किसी से रहेगा नहीं कम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम, डटे बाएं हम, नमूना रही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। दुनिया की आत्मा का तारा बनूंगा, रखूंगा ऊंचा तिरंगा परचम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम, डटे बाएं हम, नमूना रही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। शांति की नगरी है मेरा ये वतन, सबको सिखाऊंगा मैं प्यार का चलन, दुनिया में गिरने न दूंगा कहीं बम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम, डटे बाएं हम, नमूना रही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। To the school and school bags to the individual participant. For this, by the KASEZ Industries Association, and the bags are sponsored by the KASEZ administration. And proliferate the concept for other industrial packages. बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपका, आपके अथक प्रयास से हमारा प्रोग्राम सफल हुआ। थैंक यू वेरी मच। छोटे से बच्चे स्कूल के, हमारे KASEZ प्राइमरी स्कूल के बच्चे ये प्रस्तुति कर रहे हैं। सबसे निवेदन है कि तालियों से उनकी हौसला अफजाई करें। Everything put together, we are geared to provide comprehensive solutions that make our customers and businesses profitable and sustainable. Modularization, the next big opportunity. यहाँ हर कदम कदम में धरती बदले रंग, यहाँ की बोली में रंगोली साथ रंग, यहाँ हर कदम कदम में धरती बदले रंग।
सब जगह, राइट। सो डेंगू फीवर एक पहला एरिया है। दूसरा एरिया जहाँ पर हम लोग ભારત સહિત આખા વિશ્વને પરેશાન કરતા ડેન્ગ્યુની રસી બનાવવા અંગેનું રિસર્ચ કંડલા સેઝમાં થશે તો નેનો ટેકનોલોજીની મદદથી નાર્કોટિક ડ્રગ્સનો ડોઝ ઓછો થાય તે માટે પણ ગહન સંશોધન થશે। જાણીતી રૂસાન ફાર્મા નામની દવા કંપનીએ કાસેઝમાં એડવાન્સ રિસર્ચ ફેસિલિટી સેન્ટરનો શુભારંભ કર્યો છે। વડાપ્રધાનના મેક ઇન ઇન્ડિયાના પ્રોજેક્ટ હેઠળ રૂસાન ફાર્માએ કાસેઝમાં રિસર્ચ એન્ડ ડેવલપમેન્ટ સેન્ટરનો પ્રારંભ કર્યો છે। કંપનીના ચેરમેન નવીન સક્સેના અને એમડી કૃણાલ સક્સેનાના હસ્તે રિસર્ચ સેન્ટરનો પ્રારંભ કરાયો હતો। ઉલ્લેખનીય છે કે તમાકુના બંધાણીઓનું બંધાણ હટાવવા આ જ કંપની ભારતમાં એકમાત્ર નિકોટિન ટ્રાન્સ ડર્મલ પેચીસનું ઉત્પાદન કરે છે। जो इनॉग्रेशन किया है वो एक रिसर्च फैसिलिटी का किया है, राइट। लेकिन ये रिसर्च फैसिलिटी एडवांस्ड रिसर्च फैसिलिटी है। अदरवाइज रूसान के पास ये सब रिसर्च करने की क्षमता है, बट ये रिसर्च फैसिलिटी में हम नए टेक्नोलॉजीज़ में जा रहे हैं। न्यू केमिकल एंटिटी जो होते हैं, पूरी नई दवा जो पहली बार दुनिया में बनती हैं, और जो एरियाज़ जो हम कवर करना चाहते हैं जो वो इस तरह के हैं, जैसे डेंगू फीवर है जिसके लिए अभी कोई दवाई नहीं है कंट्री के अंदर, बट हमारे कोलैबोरेटर्स हैं मॉस्को में, ब्राज़ील में और सब जगह, राइट। सो डेंगू फीवर एक पहला एरिया है। दूसरा एरिया जहाँ पर हम लोग यहाँ रिसर्च करेंगे, क्योंकि रूसान और NSRT जो अब नया बनाया है रिसर्च का, ये नारकोटिक कंट्रोल ड्रग में इंडिया की लीडिंग कंपनी है। तो नए ड्रग डिलीवरी सिस्टम के थ्रू हम डोज और एब्यूज़ कम करना चाहते हैं। नारकोटिक प्रोडक्ट जितना कम दवा के अंदर जाएगा उतना अच्छा है और उसकी एफिकेसी आ जाए, तो वो नैनो टेक्नोलॉजी से और ड्रग डिलीवरी सिस्टम बाय नैनो पैचेस जो बहुत कम कर देते हैं दवा का रोल बॉडी के अंदर, और ज़्यादा दवा अंदर जा सके और पहुंच सके, इसका रिसर्च करने की फैसिलिटी आज बनाई है जो इनॉग्रेट हुई है। Providing a vital link in the chain of drug development is a world-class clinical research organization called Qantas Clinical. Conveniently located in the western coast of India at the Kandla Special Economic Zone, Qantas Clinical provides high-quality clinical research services to the pharmaceutical, nutraceutical and biotechnology industries globally. Qantas Clinical has custom-built, all regulatory compliant facility to conduct pharmacodynamic, pharmacokinetic and clinical endpoint studies. The facility is spread over a total floor area of over 40,000 square feet. The clinical wing has a capacity of 104 beds, divided into 5 flexible and independent clinical pharmacology units, suitable for conducting mixed population studies and multiple studies at a time. There are dedicated areas for subject monitoring, dosing and sample collection. There are separate areas for dining and recreation. The subject housing areas are backed up by fully equipped emergency rooms and a 24/7 in-house ambulance to manage any emergencies. High level of security and safety of volunteers are ensured through access control and continuous CCTV monitoring. Emergency call buttons are provided on the beds and in the bathrooms. The selection of volunteers is carried out through a robust SOP-driven process for screening and documentation as per ICH guidelines.
Qantas Clinical, through its team of highly experienced and trained staff, offer bioavailability and bioequivalent services, including food effect and drug interaction studies, skin sensitization and irritation studies, and glucose clamp studies. Qantas Clinical has conducted several studies with crossover, steady state, reference scaled average and replicate study designs in healthy population. Our expertise includes swift processing of BENOC applications and processing CBN formalities for conducting bioequivalent studies on controlled substances. Qantas Clinical has considerable experience with oral dosage forms, transdermal patches, and implant bioequivalence studies, as well as various other routes of administration. Qantas Clinical offers a state-of-the-art pathology lab compliant to ISO 1500189, ECG, and digital X-ray, assuring high-accuracy investigations for screening of volunteers and conducting post-study safety evaluations. Bioanalytical services cover development of methods, validation of methods, backed by a team of highly committed, experienced and qualified people with a cumulative experience of over 60 years. Qantas Clinical is driven by a highly enthusiastic and dedicated team of research professionals, most of them with PhD and post-graduation degrees, along with full-time experienced doctors and paramedics, with expertise both in clinical phase of the study conduct as well as overall project management. Qantas Clinical is the first CRO in India to bring a complete paperless end-to-end platform to conduct clinical and bioanalytical operations. A thoroughly validated paperless, the eCRF-based system of data collection includes volunteer registration, screening, laboratory reports, check-in process, electronic data capturing of clinical data, sample management, sample storage, and sample processing at the bioanalytical. We also offer report generations, protocol development, project management, and tracking using this platform. This eCRF-based paperless conduct of the BE study offers a complete audit trail and complies to 21 CFR Part 11 requirements, thus offering transparency to the regulatory authorities. This truly gives Qantas Clinical a technological edge, which assures transparency and integrity of clients' data. All the data generated during operations are integrated through the latest IT interface and have on-site and off-site data backup. The Information Security Management System at Qantas Clinical complies to and is certified for ISO 27001-2013. Qantas Clinical has expertise in all major regulatory submissions, particularly in the sphere of narcotics and controlled substances. Quality Management System is fully compliant to and is ISO 9001-2015 certified. The Quality Assurance Unit is manned by highly experienced and qualified personnel who perform periodic internal and external audits, ensuring strict compliance to maintain quality at all times. The Quality Assurance Unit also provides independent clinical trial audit and monitoring services. Qantas Clinical is a self-supporting facility having a well-equipped, state-of-the-art bioanalytical laboratory. The facility is equipped with instruments like LC-MS, ultra-low temperature freezers, -70 degrees Celsius, refrigerated centrifuges, fume hoods, sonicators, magnetic stirrers, in-house nitrogen generator, water purification system, etc., giving it an added advantage to develop and validate methods in practically all biological matrices.
the changing paradigm. A major challenge for the pharmaceutical industry today is to deliver effective yet affordable healthcare solutions to humanity at large. Addressing this need with time-critical research solutions is Naveen Saxena Research and Technology, NSRT, the changing paradigm. NSRT has strong roots in pharmaceutical research, promoted by Dr. Naveen Saxena, who had founded and nurtured the well-established Rusan Pharma more than 2 decades ago. Strategically located at the Kandla Special Economic Zone, NSRT is a one-stop source for undertaking advanced research and development for customers around the world. NSRT combines dual strengths of modern technology and expert human capital, incorporating the latest in-line computer-aided drug design with a technical tie-up with Moscow State University, having remote access to supercomputers for high-throughput screening and molecular dynamics. The facility for active pharmaceutical ingredients adopts a quality-by-design approach for developing new synthesis routes for existing molecules or developing new chemical entities. The gram-scale labs are equipped with continuous flow reactor and combi flash with PrEP HPLC. The kilo-scale labs, built as per CGMP norms with clean room conditions, have multifunctional reactors with SCADA system, heating and cooling systems, continuous flow reactor, autoclaves, centrifuges and crystallizers. NSRT has a special facility for nanoparticle API development, consisting of lyophilizer, nanoparticle analyzer with zeta potential, high-speed homogenizer, cold ultra centrifuge and optical microscope. NSRT's formulation development section has both lab-scale labs and kilo-scale pilot production units. A complete lab-scale facility is suitable for development and optimization of various critical process parameters for multiple dosage forms, all governed by QBD at each stage of development. The pilot plant scale-up facility, designed to meet all regulatory standards, is ideal for companies to take pilot-scale validation batches for clinical trials. All the development facilities are integrated with stringent quality control laboratories integrated with LIMS software. The Analytical Research Lab is equipped with the latest 21 CFR compliant equipment. The stability monitoring units are fully equipped to study the stability of API and finished products as per ICH guidelines. All the operations are governed by the Quality Assurance Department for ensuring that all research and pilot scale batches are carried out as per CGLP and CGMP standards. NSRT incorporates the latest IT systems and software to ensure 100% data security and confidentiality for the clients. The research center has self-supporting utility systems, including air handling units, HVAC systems, DM water, and UPS power systems. NSRT provides a conducive working environment for its employees, providing a knowledge-driven atmosphere that constantly enhances their research skills through continuous knowledge sharing. A committed team backed by the strength of technology-driven infrastructure to help customers reduce their time to market and to meet the constantly changing paradigm of healthcare for humanity at large.
providing a vital link in the chain of drug development, is a world-class clinical research organization called Quantis Clinical. Conveniently located in the western coast of India at the Kandla Special Economic Zone, Quantis Clinical provides high-quality clinical research services to the pharmaceutical, nutraceutical, and biotechnology industries globally. Quantis Clinical has custom-built, all regulatory compliant facility to conduct pharmacodynamic, pharmacokinetic, and clinical endpoint studies. The facility is spread over a total floor area of over 40,000 square feet. The clinical wing has a capacity of 104 beds, divided into 5 flexible and independent clinical pharmacology units, suitable for conducting mixed population studies and multiple studies at a time. There are dedicated areas for subject monitoring, dosing and sample collection. There are separate areas for dining and recreation. The subject housing areas are backed up by fully equipped emergency rooms and a 24/7 in-house ambulance to manage any emergencies. High level of security and safety of volunteers are ensured through access control and continuous CCTV monitoring. Emergency call buttons are provided on the beds and in the bathrooms. The selection of volunteers is carried out through a robust SOP-driven process for screening and documentation as per ICH guidelines. Quantis Clinical, through its team of highly experienced and trained staff, offer bioavailability and bioequivalent services, including food effect and drug interaction studies, skin sensitization and irritation studies, and glucose clamp studies. Quantis Clinical has conducted several studies with crossover, steady-state, reference-scaled average and replicate study designs in healthy population. Our expertise include swift processing of BENOC applications and processing CBN formalities for conducting bioequivalent studies on controlled substances. Quantis Clinical has considerable experience with oral dosage forms, transdermal patches, and implant bioequivalent studies, as well as various other routes of administration. Quantis Clinical offers a state-of-the-art pathology lab compliant to ISO 15189, ECG, and digital X-ray, assuring high-accuracy investigations for screening of volunteers and conducting post-study safety evaluations. Bioanalytical services cover development of methods, validation of methods, backed by a team of highly committed, experienced, and qualified people with a cumulative experience of over 60 years. Quantis Clinical is driven by a highly enthusiastic and dedicated team of research professionals, most of them with PhD and post-graduation degrees, along with full-time experienced doctors and paramedics, with expertise both in clinical phase of the study conduct as well as overall project management. Quantis Clinical is the first CRO in India to bring a complete paperless end-to-end platform to conduct clinical and bioanalytical operations. A thoroughly validated paperless, the eCRF-based system of data collection includes volunteer registration, screening, laboratory reports, check-in process, electronic data capturing of clinical data, sample management, sample storage, and sample processing at the bioanalytical. We also offer report generations, protocol development, project management, and tracking using this platform. This eCRF-based paperless conduct of the BE study offers a complete audit trail and complies to 21 CFR Part 11 requirements, thus offering transparency to the regulatory authorities. This truly gives
Qantas Clinical, a technological edge which assures transparency and integrity of clients' data. All the data generated during operations are integrated through the latest IT interface and have on-site and off-site data backup. The Information Security Management System at Qantas Clinical complies to and is certified for ISO 27001:2013. Qantas Clinical has expertise in all major regulatory submissions, particularly in the sphere of narcotics and controlled substances. Quality Management System is fully compliant to and is ISO 9001:2015 certified. The Quality Assurance Unit is manned by highly experienced and qualified personnel who perform periodic internal and external audits, ensuring strict compliance to maintain quality at all times. The Quality Assurance Unit also provides independent clinical trial audit and monitoring services. Qantas Clinical is a self-supporting facility having a well-equipped, state-of-the-art bioanalytical laboratory. The facility is equipped with instruments like LC-MS, ultra-low temperature freezers, -70 degrees Celsius, refrigerated centrifuges, fume hoods, sonicators, magnetic stirrers, in-house nitrogen generator, water purification system, etc., giving it an added advantage to develop and validate methods. At Thermax, we believe that improving your business is our business. Taking cognizance of the need to improve quality and speed of delivery with minimum risks at the site, we have continuously evolved in the concept of modularization by assembling various subsystems into modules that can integrate seamlessly into a process plant. We started assembly and modularization of our equipments way back in 1995. This was mainly for the export markets where they wanted to maximize the assembly of the equipment so that the site
About thousands of years ago, human civilization inhabited on the banks of river, embarked on to create the economic occupations. Today, after thousands of years, it is undeniable that business districts, financial services and IT-enabled services sector growth add to its thriving economic expansion. India, one of the fastest developing countries in the world, is scaling new heights with productive integration of easy business provisions and fiscal transactions. Gujarat has always been a preferred investment destination because it's attributed with political stability, strong leadership, pro-business policies, vast talent pool, entrepreneur. पीछे जो भी लोग खड़े हैं कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।
कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। कासेज के 97वें स्थापना दिवस समारोह में मैं मोना पहलाजानी अपने साथी श्री संजय सुमन के साथ आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप सभी को कासेज के 97वें स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। एक बार जोरदार करताल ध्वनि से इस समारोह की शुरुआत करते हैं। धन्यवाद। इस सुहाने अवसर की शोभा बढ़ाने के लिए हमारे बीच उपस्थित है हमारे मुख्य अतिथि विशेष श्री संजय कुमार मेहता जी, चेयरमैन दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट। हमारे सम्माननीय अतिथि गेस्ट ऑफ ऑनर श्री प्रमोद वसावे जी, कमिश्नर CGST कच्छ, तथा श्री TV रवि, कमिश्नर कस्टम्स कांडला एंड मुंद्रा, गुजरात SEZ एवं EOU के जोनल डेवलपमेंट कमिश्नर तथा कांडला SEZ के विकास आयुक्त डॉक्टर रामेचंद्र जी, संयुक्त विकास आयुक्त श्री सत्यदीप महापात्र जी, सीमा शुल्क उपायुक्त श्री अरुण कुमार जी, उप विकास आयुक्त श्री दीपक जाला जी, कासिया के प्रेसिडेंट श्री पारस जैन जी, कासिया के सेक्रेटरी श्री RG चेलानी जी, कांडला SEZ के सभी यूनिट होल्डर्स, मीडिया के सभी प्रतिनिधिगण एवं अन्य अतिथिगण, सभी उपस्थित अतिथियों, अधिकारियों एवं मेरे सहकर्मचारियों का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को एक बार फिर से 97वें स्थापना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कासेज की स्थापना पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की कर कमलों द्वारा 7 मार्च 1965 में हुई थी। तब से कासेज ने उत्तरोत्तर तरक्की की है। 1965 से लेकर अब तक कासेज का निर्यात लगातार बढ़ता ही गया है। 1966-67 में कासेज का कुल निर्यात मात्र 7 लाख रुपए था, जो पिछले वित्तीय वर्ष 19-20 में बढ़कर 6,360 करोड़ रुपए हो गया है। आज हमें आप सभी को यह बताते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि हमारे कार्यालय के प्रशासन व प्रबंधन सिस्टम को सुचारू रूप और सुव्यवस्थित रूप से चलाने के लिए ISO 9001:2015 तथा इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम ISMS के लिए ISO 27001:2013 की मंजूरी मिल गई है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कासेज प्रशासन ने अब पिछले स्थापना दिवस के अवसर पर वन की बात कार्यक्रम के हिस्से के रूप में SEZ डेवलपर्स, को डेवलपर्स, SEZ की इकाइयाँ और कासेज एसोसिएशन ने ग्रीन SEZ, क्लीन SEZ और प्रॉस्परस SEZ बनाने का संकल्प लिया था। और आज हमें यह बताते हुए गर्व हो रहा है कि कासेज हरा भरा, स्वच्छ और फूल पौधों से आच्छादित हो गया है। इसमें रंग बिरंगी फूलों पर मंडराते हुए पक्षियों और तितलियों को चहचहाते हुए आप हर तरफ देख सकते हैं, जिसका पूरा श्रेय जाता है हमारे विकास आयुक्त डॉक्टर रामेचंद्र जी के कुशल नेतृत्व तथा उनकी टीम को। बहुत बहुत तालियों से सर का अभिवादन करें। थैंक यू। 57 साल की इस विकास गाथा में हम सभी के इस साझा अथक प्रयासों के लिए आप सभी को बहुत बहुत अभिनंदन। आइए कार्यक्रम शुरू करते हैं, लेकिन परंपराओं का एक बार फिर से निर्वाह, उस भारतीय सभ्यता और संस्कृति का अनुसरण जिसमें प्रत्येक जाति, प्रत्येक धर्म और प्रत्येक विचारधारा के अंदर उस ज्योत के प्रति समर्पण की भावनाएं सर्वप्रथम होती हैं। कहते हैं आगाज़ अगर खूबसूरत हो तो अंजाम भी खूबसूरत होता है। आइए उस पवित्र ज्योत को प्रणाम करते हैं। और जो आधा है पंच तत्वों का, मैं हमारे मुख्य अतिथि विशेष श्री संजय मेहता जी से, सम्माननीय अतिथि श्री प्रमोद वसावे जी तथा TV रवि जी से, हमारे विकास आयुक्त डॉक्टर रामेचंद्र जी से, कासिया के प्रेसिडेंट श्री पारस जैन जी से तथा संयुक्त विकास आयुक्त श्री सत्यदीप महापात्र जी से निवेदन करती हूँ कि वे दीप प्रज्वलित करके इस समारोह का शुभारंभ करें।
शुभम करोति कल्याणम आरोग्य धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। दीप ज्योति परम ब्रह्मा दीप ज्योति जनार्दन दीपमातु हर पापम दीप ज्योति नमोस्तुते। सभी अतिथियों से निवेदन है कि कृपया स्थान ग्रहण करें। नमस्ते सर। सभी अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत की परंपरा है अतिथि सत्कार। हमारी भारतीय संस्कृति में अतिथियों को देवता के तुल्य माना गया है। कहा जाता है अतिथि देवो भव। आइए उस परंपरा को प्रणाम करते हैं। चंद पंक्तियाँ हमारे अतिथियों के लिए। अतिथि सत्कार बिना हर अरदास अधूरी होती है। अतिथि सत्कार बिना हर अरदास अधूरी होती है। अतिथि वो ही फरिश्ते हैं जिनके आने से आस पूरी होती है। हम अपने अतिथियों का स्वागत नन्हे पौधों से कर रहे हैं जो उन्हें हमेशा फल फूल देते रहेंगे। सभी अतिथियों से निवेदन है कि कृपया वे धरती माँ के इस छोटे से अंश को प्यार से पाल पोस कर बड़ा करें तथा बाहरी सुंदरता को न देखकर उनके अंदर छुपी उर्वरता को देखें। मैं विकास आयुक्त डॉक्टर रामेचंद्र सर से निवेदन करती हूँ कि वे हमारे मुख्य अतिथि विशेष श्री संजय कुमार मेहता जी का नन्हे पौधे से स्वागत करें। पौधे का नाम थैंक यू सर। मैं श्री सत्यदीप महापात्र जी से निवेदन करती हूँ कि वे हमारे सम्माननीय अतिथि श्री प्रमोद वसावे जी का सैपलिंग से स्वागत करें। मैं सीमा शुल्क उपायुक्त श्री अरुण सर से निवेदन करती हूँ कि वे सैपलिंग से श्री टीवी रवि जी का स्वागत करें। मैं उप विकास आयुक्त श्री दीपक जाला जी से निवेदन करती हूँ कि वे श्री पारस जैन का सैपलिंग से स्वागत करें। थैंक यू सर। श्री सत्यदीप महापात्र सर भारतीय राजस्व सेवा ग्रुप ए 2007 बैच के अधिकारी हैं। उन्होंने विभिन्न कमिश्नरेट जैसे राजकोट, जामनगर, अहमदाबाद, कस्टम्स एंड सेंट्रल एक्साइज में असिस्टेंट कमिश्नर एवं डिप्टी कमिश्नर के पद पर काम किया है। प्रमोशन के बाद ज्वाइंट कमिश्नर के पद पर बेंगलोर नॉर्थ जीएसटी में कार्यरत रहे। 2018 से अब तक वे कासेज में डेपुटेशन पर संयुक्त विकास आयुक्त के पद पर कार्यरत हैं तथा 1/1/2020 से वे एडिशनल कमिश्नर के पद पर पदोन्नत हुए हैं। बहुत बहुत तालियों से सर का स्वागत कीजिए। मैं संयुक्त विकास श्री सत्यदीप महापात्र जी से निवेदन करती हूँ कि वे उपस्थित सभी अतिथियों का स्वागत व संबोधन करें। सर।
you, madam. A very good morning to one and all. Madam ने आज बता दिया है कि what is the occasion today. It was on this day in 1965 that the foundation stone of KASEZ was laid, not only as the first, what was then called the export processing zones in Asia, in India, but also in Asia. And today, the zone boasts of 265 units in manufacturing, trading, warehousing, and ITS services. Not only is it a single zone as it was in 1965, today KASEZ is also the Zonal Development Commissioner's Office for the whole of Gujarat, encompassing 20 functional SEZs and more than 185 EOUs. So on this occasion, I take this opportunity to welcome Shri S.K. Mehta, Chairman Deen Dayal Port Trust, the chief guest for today. The guests of honor, both my seniors in service, Shri Pramod Wasave, Commissioner GST Gandhidham, Shri T.V. Ravi, whom most of you will be familiar with. Sir has worked as Director SEZ for a long time in the Ministry of Commerce. Shri T.V. Ravi is presently the Commissioner Customs, Mundra and Kandla. I welcome our co-hosts, that is the KASEZ Industries Association with their delegation, and on the dais is Shri Paras Jain, I welcome him. The founding president of KASEZia, Shri Ajay Kothari, who is off the dais, and Shri R.G. Chelani, who is the secretary of KASEZia. I also welcome the dignitaries of the dais, the awardees, the unit holders, the members and our friends from the electronic and print media. And let me tell you, this program is being live streamed on YouTube. So those watching on YouTube are also welcome for this program. First of all, my apologies for the strong instructions that I sent out from my desk regarding the limitations on the number of people who can attend from every unit. But you may appreciate that these are not normal times, or rather these are the new normal times. So this was required to be done. As regards exports, as you all know, the corona pandemic created widespread disruptions in the world supply chains, and a lot of people lost their jobs. But I'm proud to announce that we had left corona behind way back in September 2020, and we were in the green zone in the middle of September last year. As at the end of January, we have a 1% growth. And although it might not seem like a big thing, but then in the corona times, running to stay where you are, I think we have achieved that, and we are moving further. And during the course of this program, you will realize as to what we have done and what we are going to be doing. And they are not insubstantial achievements. They are quite substantial in nature, which I'll be going through. Since, like I told you, that Gujarat, the Zonal Development Office at Kandla, Zonal Development Commissioner's Office at Kandla, it also controls the whole of Gujarat. There are some unique concepts in the SEZs of Gujarat, some of which I will be explaining and some of which DC sir will be explaining in his presentation, which is quite colorful, and you will have a visual treat after some time. Or rather, it will be an audio-visual treat. So, Gujarat boasts of two SEZs which are very unique in nature in themselves. First is the GIFT SEZ at Gandhinagar, which hosts India's only international financial services center. And secondly, in the SEZ fold, we have got the mega refinery at Jamnagar, crude oil refinery at Jamnagar, which taken together with its DTA part constitutes the world's largest grassroots refinery anywhere. This program, this is called the award function, so I'll just come to the nitty-gritties of the award function now. We will be giving out 15 export awards, celebrating excellence of various units and developers in various areas. So 10 of these will be export awards which will be given out to KASEZ units, 2 Swachhta awards, 1 in the pharma category, 1 in the non-pharma category, 1 green award which will be given to a KASEZ unit. And as you would realize that having a job during the corona times is something
we need to cherish, and those people who give those jobs need to be recognized. So we will be giving one award for the maximum employment generation, and since KASEZ is also the zonal DC's office for Gujarat, we will be honoring one private SEZ for their overall performance. And regarding the way forward, in the last Foundation Day, from the same pedestal, we had announced the various green measures that we had taken. And all of this started on the November 24th, 2019, on the occasion of the 550th birth anniversary of Guru Nanak Dev. That time we were going solo, but we suggested in the context of the 75th year of India's independence, which will be celebrated from this August, the Independence Day this year, to the same day next year. So in this context, the ministry has decided to direct all the SEZs to follow suit on the green measures that KASEZ has taken, and on similar lines, all SEZs are now expected to take measures to make their SEZs green. And the program will culminate on the Independence Day next year. So as part of this green movement, we had pledged to plant 10 lakh trees in Gujarat. KASEZ alone is nearing the 4 lakh mark, and most of it has been done through the PPP model without spending a pie of the public money. On PPP model through tree donations, and recently the Forest Department has promised us to give 4 lakh trees, which we thank them for. In fact, Sanjay Mehta sir also belongs to the Indian Forest Service. So we're very thankful to the Gujarat Forest Department for such a kind gesture on their part. As regards the future of the SEZs, we are working on 3 planks. First is the green initiatives that you can see, increasing the green spaces horizontally and vertically, using smart technologies, not just technology, mind you, it is smart technology. For example, we have installed smart street lights. In fact, we have tendered for the smart street lights, which will be installed in a few months' time. These smart street lights will lead to saving of energy, and also will have the self-healing and the error prediction capabilities. So you would know beforehand where a particular street light needs replacement. This is one of the projects, as an example. And the other project that we have implemented is the automatic number plate recognition system. Till now we had the CCTVs, which was collecting tons of data, but nobody was actually analyzing or auditing this data. But the smart automatic number plate recognition system works on the AI base. So we can, get not raw data, but analyzed data, which we can use it for better management of security and entry and exit into the SEZ. And to improve the overall aesthetics of the SEZ, we have recently tendered, and the tender is finalized, and about to be, the work order is about to be given for a signages and street furniture project, which will improve the overall aesthetics of the SEZ. And in this context, we are going, all these measures are ultimately aimed towards building a brand image for the KASEZ. And like Mona Madam had already announced, we have already obtained the ISO 9001 certification. Because you might do many things, but unless you have a certificate saying that you have done this, nobody is going to believe you. So we are into obtaining the relevant certificates in a big way. For example, we have obtained the ISO 9001, and we are in the process of obtaining ISO 27001 for information security management system. We realize that if you want to bring big names into KASEZ, you need to ensure that, you need to assure them that their intellectual property will not be leaked or lost to a third party or their business rival. So this is in this context that we are planning to obtain the ISO 27001 certification. Also, we have registered for the IGBC green certification in the platinum category for the KASEZ as a green city. So which I am very hopeful we have got the necessary ingredients, and we are working on obtaining that certification as well. And after the culmination of all these projects, we are not just going to leave it, because everything is economics today. So we are planning to basically convert these measures into carbon credits, which for which we can monetize the projects that we have done. In this context, I request the MCs for today, Mona Madam and Sanjay Suman, to carry the function forward. Thank you.
थैंक यू सर। कासेज के 57th फाउंडेशन डे के अवसर पर आयोजित इस एक्सपोर्ट अवार्ड फंक्शन में मैं संजय सुमन एक बार फिर से आप सबों का स्वागत करता हूं। इस गैदरिंग को देखकर मुझे एक कवि सम्मेलन का वाकया याद आ रहा है। हुआ यूं कि एक बार हमारे मोहल्ले में एक हास्य कवि सम्मेलन का आयोजन हुआ। वहाँ पे एक कवि श्रोताओं को कुछ ज़्यादा ही भा गया। सामने ही बैठे थे हमारे पड़ोसी मिस्टर श्यामलाल सपत्नीक, दोनों का ही मन हास्य रस में नहा गया। पत्नी तो थी कुछ इतनी अधिक प्रसन्न मन कि रिश्ता ही भूल गई। पत्नी तो थी कुछ इतनी अधिक प्रसन्न मन कि रिश्ता ही भूल गई। जोश ऐसा छा गया, अपने ही पतिदेव के हाथ पे कंधा मार के बोली, भाई साहब मजा आ गया। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, हमारे कासेज परिवार के मुखिया डॉक्टर अमित चंद्रा सर 1989 बैच के ITS अधिकारी हैं। आपने अलग अलग मिनिस्ट्रीज में अलग अलग कैपेसिटीज में काम किया है। Sir has very deep knowledge and experience in public affairs, monitoring of mega projects, city management, outdoor advertising and parking policies, sanitation and urban unorganized sectors, legislative and parliamentary affairs, international trade, labor policy and reforms, sports administration and promotion, and arts, aesthetics and culture. During his stint with the Municipal Corporation of Delhi as officer on special duty in charge of outdoor advertisement, parking, sanitation, Sir had played an instrumental role in framing the outdoor advertisement policy for Delhi, which was approved by the full bench of Honorable Supreme Court of India, overruling its own decision and the decision of Honorable High Court of Delhi. आप 3 यूनियन मिनिस्टर्स के PS भी रह चुके हैं। आपने ग्रेजुएशन में गोल्ड मेडल के साथ साथ सेंट्रल एशियन स्टडीज़ में स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज JNU से डॉक्टरेट ऑफ फिलॉसफी की उपाधि भी हासिल की है और आपने कई किताबें भी लिखी है। वर्तमान में आप कांडला SEZ के डेवलपमेंट कमिश्नर के साथ साथ पूरे गुजरात के जोन के सभी SEZs और EOUs के जोनल हेड के रूप में कार्यरत हैं। चंद लाइनें सर के लिए मैं कहना चाहूँगा कि जब सर पे हाथ उनका होता है तो आसमां छूने का मन करता है। जब सर पे हाथ उनका होता है तो आसमां छूने का मन करता है। जब साथ उनका होता है तो कुछ भी कर गुजरने का मन करता है। आपने तो इस नमकीन बेजान बंजर ज़मीन में चंदन उगा दिए। आपने तो इस नमकीन बेजान बंजर ज़मीन में चंदन उगा दिए। आपकी इस खासियत को तहे दिल से सम्मान देने का मन करता है। एक जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। मैं हमारे आदरणीय विकास आयुक्त डॉक्टर अमित चंद्रा सर से आग्रह करना चाहूँगा कि वे हम सबों के साथ अपने डायनामिक विजन शेयर कर हमें लाभान्वित करें। Working now. Thank you, Suman. मेरे esteemed चीफ गेस्ट आदरणीय संजय मेहता जी, प्रमोद बसावे जी, रवि साहब मेरे पुराने कलीग, मेरा सहपाठी तो मैं नहीं कहूँगा, मतलब सहकर्मी और मित्र सत्यदीप महापात्रा, जैन साहब, चिरानी साहब, मीडिया के मित्रों, सारे मित्रों। इनफैक्ट ये साल का एक ऐसा समय होता है जब वो कहते हैं ना कि प्री मैरिटल डेज में वादे और कसमें खाने वाली बातें होती हैं। तो हम लोग वादा और कसम खाते हैं आज के दिन में, और सारे प्रेस वालों के सामने कसम खाते हैं कि हम अगले साल जब आपसे दोबारा मिलेंगे तो ये कसम निभा के आपका साथ देंगे। अब उस अफेयर में जो हमारा कासेज के साथ रहा है, जो हमारे यूनिट्स के साथ रहा है, जो हमारे प्रेस के साथ रहा है, मैं कितना खराब उतरा हूँ न उतरा हूँ, इसकी एक झांकी तो सत्यदीप ने ऑलरेडी आपको दे दी थी। मेरा प्रेजेंटेशन भी सत्यदीप ने ही बनाया है, अरुण ने बनाया है, मयूर ने बनाया है, बड़ा कलरफुल बनाया है, पूरा ग्रीन प्रेजेंटेशन है। बट प्रेजेंटेशन मैं स्किप करूँगा, थोड़ी बातें कर लूँ, क्योंकि कई बातें तो इन लोगों ने पहले ही कह डाली है। मैंने कहा मेरे लिए बचा क्या, तो आप लोगों से थोड़ी बातें कर लूँ। बातें करने से शायद कई चीज़ें क्लियर होते जाती हैं, और मैं प्रेजेंटेशन को स्किप करता चला जाऊँगा, बिकॉज प्रेजेंटेशन में पिक्टोरियली है, पिक्टोरियली आपने कुछ देखा है, कुछ देखेंगे और उसका इफेक्ट होगा। तो मैं बैकग्राउंड दे दूँ, उसके बाद 10-20 प्रेजेंटेशन एक साथ स्किप करके आपको दिखाता चला जाऊँगा। इनफैक्ट जब मैं सबसे पहले यहाँ आ रहा था कांडला ज्वाइन करने के लिए, तो मेरी सेक्रेटरी ने कहा कि कांडला जा रहे हो, मेरा स्टेट है, मैं गुजरात स्टेट की हूँ, तो मैं ऐसी जगह भेज रही हूँ कि तुम दिल्ली जल्दी नहीं आ सको।
उस समय में कोई फ़्लाइट नहीं होती थी, आज के दिन में तो फ़्लाइट भी यहाँ से चालू हो गई है। मेरे मित्रों ने कहा कि मैंने पूछा कि कांडला में ऐसी चीज़ क्या है? कहता सबसे पहली चीज़ है वो मरुभूमि है, केवल बालू बालू है और वहाँ पे इंग्लिश बबूल होते हैं। हमने कहा इंग्लिश बबूल? कहता इंग्लिश बबूल की एक खासियत ये है कि दूसरे पेड़ को नहीं होने देता है। तो जब सबसे पहले मैं इस कांडला में आया तो मैंने देखा कि ढेर सारे इंग्लिश बबूल के पेड़ थे। उसके साथ हम लोग गुजरात वाले लोग प्रिंसिपल ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस में विश्वास करते हैं। तो गाय गाय के बारे में नहीं रहेंगी, सुअर सुअर के बारे में नहीं रहेंगे, गाय सुअर आदमी हम लोग सब एक साथ कोएग्जिस्ट करते हैं। तो हमारे जोन में देखा कि सारे बड़े आराम से घूम रहे हैं। वो हमारे प्रोसेसिंग जोन के अंदर भी वही बात थी, नॉन प्रोसेसिंग जोन के अंदर भी यही बात थी। तो उसका मतलब एक चीज़ और होता है कि अगर आपने कुछ लगाया तो ये विश्वास है कि वो उनका भोजन हो जाएगा, तो आप लगा भी नहीं सकते कुछ भी। तीसरी चीज़ें जो मुझे सबसे गजब बात लगी, आप लोगों ने कच्छ कौन था जानते हैं? कच्छ कौन था? कच्छ बृहस्पति के पुत्र का नाम कच्छ था। बृहस्पति कौन थे? देवताओं के गुरु थे। और कच्छ को मृत्यु संजीवनी का वरदान मिला था। इनफैक्ट संजय जी ने कहा कुछ कहानियां ही मैं कह डालूं तो मैं आपको कहानी सुना देता हूँ, शायद आप लोग को तो पता होना चाहिए, आप लोग कच्छ के हैं। तो जो देवताओं के गुरु बृहस्पति का पुत्र कच्छ था, उसका अफेयर, शादी नहीं, अफेयर किससे था? देवयानी से। देवयानी कौन थी? शुक्राचार्य की पुत्री थी। वैसे देवयानी ने बाद में शादी ययाति से की, लेकिन अफेयर उसका देवताओं के गुरु के पुत्र से था। तो देवयानी और इनका जब अफेयर था तो युद्ध हो रहा था। युद्ध में जब देव और दानव कहीं मरने लग गए तो इसने मृत्यु संजीवनी का प्रयोग नहीं किया, कच्छ ने, जो बृहस्पति का पुत्र था। तो देवयानी ने कहा मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती हूँ, जो अपने पास विद्या है उसको किसी अच्छे काम में नहीं दे सकता है, तो मैं आपसे शादी नहीं करूँगी। उसके अलावा उसने एक और उसको श्राप दिया। वो श्राप दिया कि तुम जहाँ भी रहोगे वहाँ की भूमि बिल्कुल उपजाऊ नहीं होगी, बिल्कुल अकाल पड़ता रहेगा और तुम्हारी कोई विद्या काम नहीं आएगी। तो मैं जब आ रहा था तो हमें कहा गया कि आप उस कच्छ की भूमि से जा रहे हैं जो श्रापित भूमि है। आप लोगों को पता नहीं कितने लोगों को हिंदू माइथोलॉजी की ये कहानियाँ पता होगी। तो यहाँ आने के बाद सबसे पहले मैंने कहा इसको क्या किया जाए। तो सबसे पहला हमारे पास सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था कि मैंने देखा हमारे सामने 5 नीम के पेड़ लगे हुए थे और एक सप्ताह के अंदर सूखते 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 सूख गए, फुल ग्रोन पेड़ थे। मैंने कहा उसमें हुआ क्या? फंगस लगा नहीं है, हम लगातार पानी डाल रहे हैं, उस नीम के पेड़ में आखिर क्या हुआ जो फुल ग्रोन पेड़ इस तरह सूख गए? हमारे पहले के लोगों ने लगाया था। मुझे बताया गया ये दिखा रहा है कि बाकी नीम के पेड़ भी जाएंगे, हमारे यहाँ जाएंगे, हमारे यहाँ ढेर सारे नीम के पेड़। बात क्या है? लेकिन बात ऐसा है कि यहाँ से 6 मीटर 5 से 6 मीटर खारा पानी है। जब नीम के पेड़ मिलता है तो जड़ें नहीं मिलता है, तो जड़ें खारा पानी को खारा पानी को टच करती है वो पेड़। और हर पेड़ का ये कच्छ का जो कर्स जैसे बड़ा होने लगेगा, बड़ा होने के बाद पानी की रिक्वायरमेंट होगी, खारा पानी को टच करेगा पेड़। तो न सिर्फ पेड़ नहीं हो रहे जो एग्जिस्ट कर रहे थे उनके साथ भी बड़ा प्रॉब्लम। मैं अहमदाबाद में गया था, कॉन्फ्रेंस में बात करते करते हमारे कुंवर जी हैं और बाकी लोग हैं, उनसे मुलाकात। मैंने कहा भाई तो बड़ी मैं बचपन से गाँव में पढ़ा लिखा हूँ और मुझे हरियाली कैसे आएगा। उन्होंने कहा कि आपने बात बताइए, शायद आपने सुना है छत पे खेती में सारे बड़े पेड़ सारे छत पे और उसमें सेब है, अनार है। हमने कहा होता कैसे? पेड़ का आप इतनी मिट्टी डालिए, बड़े पेड़ को भी वहीं पे। दूसरी बात उन्होंने बताया कि आपने मियावाकी का नाम कहता है ये जापान के एग्रीकल्चरिस्ट जिन्होंने बताया कि प्लांटेशन मत कीजिए, फॉरेस्टेशन। तो आप वृक्ष महोत्सव वन महोत्सव। अब मेरे साथ मुश्किल पेड़ों को यहाँ लगाना शुरू करता। सारे लोगों ने कहा यहाँ तो ब्लेड भी ड्रॉप हो गया। अगर ये ड्रॉप आप जानते हैं प्रेम पत्र मेरे कई बार मंत्रालय में जाते हैं, प्रेम पत्र और चला जाएगा, सारे पैसे लोगों के खराब। मैंने कहा ठीक है, तो सबसे पहले हमारे जैन साहब सेक्रेटरी साहब के पास भाई आप हमें पेड़ दो। सारे आप लोग दिवाली में मिलने आते हैं। हमने कहा मैं आपसे ड्राई फ्रूट दान
वृक्षदान, तब से हमने वृक्षदान की परंपरा और हमारे आज भी ऑफिसर दिवाली में मिलते हैं, दिवाली में मिलते हैं, किसी ओकेजन पे जाते हैं तो हम लोग पेड़ लेके और एक दूसरे को पेड़ देते, ताकि उस पेड़ को और आज भी जब हमने सारे चीफ गेस्ट का यहाँ पे बुलाया, उनको पेड़ लगा की देखभाल आपको हमारी याद आ जाएंगे, फूल तो मुरझा जाएंगे, लेकिन संजय जी को लगाएंगे, पेड़ दिया है लगाएंगे, दुनिया ने दिया था, तो हमारी याद आती रहेगी। इसलिए हमने कमिंग बैक टू द सेम टॉपिक फिर हम लोगों ने क्या किया, मियावाकी में सबसे पहले 1 मीटर तक के पूरी मिट्टी को हटाने के बाद उसमें क्या मिक्स करना, केमिकल एनालिसिस यहाँ की मिट्टी में टरमाइट का लकड़ी का बुरा डालो, कोयला के साथ ऑयला डालना, गोबर और क्या डालना, गोबर मिट्टी खाद डालो और मिट्टी डालो। फायदा क्या है? इसका फायदा क्या है? सबसे पहले लकड़ी का बुरादा होता है, वो 3 से 4 साल तक जो भी मॉइस्चर है उसको रिटेन करता है, और जो टर्माइट है उनको खाना देने के बाद आपके साथ क्रिया के द्वारा आपको खाद देते हैं। दूसरा काम जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो गोबर आपका माइक्रो को सबसे पहले खोद कर निकाला, और ये कारण मैं इसलिए आपको बताने जा रहा हूँ कि प्रेस वाले आप सबके लिए मैं मियावाकी फॉरेस्ट का बड़ा आज अधिवक्ता हूँ। मैं चाह रहा हूँ हम लोग न सिर्फ यहाँ पे हमने जोन के अंदर किया है, बकायदा प्रोसेसिंग जोन के अंदर जो बाउंड्री वॉल है कितने किलोमीटर 24 किलोमीटर का, उसके पूरे एरिया में केवल मियावाकी फॉरेस्ट लगा है। बट उसका थोड़ा सा आपको बता दें, उसके बाद से हम आगे बढ़ जाएंगे अचानक। उसके बाद से हमने उसने कहा कि चार डाला, ये डाला, पेड़ लगाया जाए, तो हमने बायोडाइवर्सिटी के पेड़, जैसे आपको पता है वो जो पेड़ होता है जिससे सैजन कहते हैं, आप लोग सैजन का नाम सुने हैं? बोरिंगा जिसको बोरिंगा जानते हैं? बोरिंगा का पेड़ में सबसे बड़ी खासियत नाइट्रोजन फिक्स करता है जड़ में, उसके पत्ते भी नाइट्रोजन क्रिएट करते हैं। बोरिंगा के अलावा पेड़ों के नाम मीठी इमली के पत्ते में भी नाइट्रोजन फिक्स होता है। आपने देखा होगा राजस्थान में जो कांटे का पेड़ होता है जिसको जनी जिससे बहुत खुश होते हैं, उस पेड़ का भी न सिर्फ नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है बल्कि चारों ओर मॉइस्चर रिटेन करता है। इसी तरीके से कई पेड़ को केपी का स्टोर हाउस कहते हैं। पत्ते गिरते हैं, पत्ते गिरने के बाद उनमें नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, पोटाशियम होता है, कैल्शियम होता है। इतना के अलावा हमने फिर सारा का सारा मल्चिंग प्रोसेस शुरू किया। मल्चिंग प्रोसेस में क्या होता है, आप डाल देते हैं ताकि उनकी एक्टिविटी वहीं होती रहती है। और आज के दिन में, आज आपने बाहर पिक्चर देखे, हम पिक्चर देखेंगे, हमारे पास ये पेड़ में कंपटीशन होता है कि कौन सूरज की रोशनी जल्दी लेगा। सूरज की रोशनी लेने के लिए पेड़ों को लंबा होना पड़ता है, लंबा होने के कारण उनका ग्रोथ फेनोमिनल होता है। तो आज हमारे पास 3 साल के अंदर पेड़ 20 मीटर तक हो जाएंगे, नंबर 1। नंबर 2 जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, वो पेड़ आज के दिन में तो घास हटा रहे हैं, लेकिन पेड़ एक दूसरे को इतनी छाया कर देंगे कि सूरज की रोशनी जमीन तक नहीं पहुंचेगी, घास नहीं पनपेगा, उसके अंदर जितने पौधे पत्ते गिरे होते हैं, मल्चिंग प्रोसेस होता रहेगा, फिर कोई पानी देने की जरूरत नहीं है। कहने का मतलब ये है कि 1 मीटर के अंदर की मिट्टी में वो पेड़ एक दूसरे से शेयर करते हुए बड़े बड़े पेड़ इतने हो जाएंगे उसके अंदर में, ताकि उनको पानी देने का हमारा प्रोसेस खत्म हो जाएगा, जिसके चलते नीम के पेड़ जा रहे हैं। तो हमने ये प्रोसेस शुरू किया है। आपको मैं क्विकली दिखा दूं, इसको क्विकली दिखाने के बाद चलिए, ये तो ISO सर्टिफिकेशन का है, ये आपको बता दिया है हमारे फाउंडेशन। आपको ये भी बता दिया गया है कि आज के दिन में कासेज से हमारा 5,500 करोड़ का अगर एक्सपोर्ट होता है तो 11,000 करोड़ टोटल एक्सपोर्ट्स प्लस DTA क्लियरेंस बनाकर हम लोग का प्रोडक्शन है। मतलब जितना एक्सपोर्ट्स होता है उतना ही हम DTA को भी आत्मनिर्भर भारत के अंदर सप्लाई करते हैं। हमारा, जैसा कि सत्यदीप ने बताया कि हमारा जो रिटार्डेशन था वो बॉटम आउट कर गया। मतलब 1% जो हम ले रहे हैं ग्रोथ का, यानी अप्रैल से लेकर के आज तक 1% का ग्रोथ हुआ है। मीनिंग देयर बाय 3 महीने जो बंद रहे थे उनको इंक्लूड करने के बाद आज हम लोग वापस बाउंस बैक कर गए हैं, और जब बाउंस बैक करते हैं तो दुगुना स्पीड से हम लोग आगे बढ़े चले जा रहे हैं। मैंने बताया था क्लीन 1 की बात हमने शुरू की थी, ये जो जर्नी आपको दिखाया था, ये शुरू के, ये ज़मीन ये थी शुरू की, आपने देखिए सारा नमक का खारा नमक था। उस ज़मीन से वहाँ जाने के बाद आज के दिन में ये जंगल हमारे इस तरीके से आए हैं सारे, या सारे जंगल का ये व्यू है। आप देख सकते हैं किस तरीके से जंगल, आप सुबह पेड़ों से बात करते हैं, वो कहते हैं ना कि अगर कोविड के टाइम में पेड़ों से बात करना बिल्कुल नॉर्मल है,
अगर पेड़ आपसे बात करने लग जाए तो कुछ अब नॉर्मल है, लेकिन हमारे पेड़ भी हमसे बात करते हैं कि नहीं मैं ठीक हूँ। ये सारे एक्चुअल पिक्चर हैं जो ये सारे बर्ड्स हमारे यहाँ पे नेस्टिंग हो रही है। ये कासेज के पिक्चर्स है, कहीं बाहर के पिक्चर नहीं है। जहाँ पे एक ब्लेड ऑफ ग्रास नहीं होता था, आज देखिए क्या सिचुएशन है। सारे पिक्चर्स हैं हमारे। बैरन लैंड से ग्रीन हेवन कैसे बना है। ये हमारे जोन्स के पिक्चर हैं सारे। हर्बल गार्डन हमने ये जो है यहाँ पे एक गार्डन सेटअप किया है, जिस गार्डन में जितने हर्ब्स यहाँ पे डेवलप हो सकते हैं अलग अलग बीमारियों के लिए, चीज़ों के लिए, वो गार्डन बना रहे हैं। नक्षत्र वन हमने इनॉग्रेट किया है। नक्षत्र वन में हर किसी का नाम, राशि, बर्थडे के मुताबिक पेड़ जो नक्षत्र को होते हैं सिर्फ वही पेड़ लगाए जाएंगे, जिनको ऑस्पिशियस पेड़ कहते हैं। तो आप लोगों में भी कोई भी अपने बर्थडे पे एक उस राशि का, उस नक्षत्र का पेड़ लगाना चाहेगा, इज मोस्ट वेलकम एंड कम एंड प्लांट इन दिस नक्षत्र वन। ये हमने वहाँ पे फलों के भी पेड़ लगाए हैं, ढेर सारे नक्षत्र के लगाए हैं। ये सारे के सारे एक्चुअल पिक्चर्स है। ये हम लोग पहले एक यहाँ पे जोन था जहाँ का, जिसका पर्पस मैंने पूछा इसका पर्पस क्या है, लोगों ने कहा यहाँ पे जो कपड़े वाले, प्लास्टिक वाले हैं अपना सामान डाल देते हैं, क्योंकि उसको ड्यूटी दे के बाहर नहीं निकालना पड़े, और हर साल में एक एनुअल रिचुअल होता है आग लगाने का, उसमें वो चुपचाप आग लग जाती है ताकि कपड़ा बाहर। वो हटाने के बाद मैंने उसको बायोलॉजिकल कॉम्पोस्ट में हम लोगों ने उसको कन्वर्ट कर दिया है, और उस कंपोस्ट पे ढेर सारे बर्ड्स आते हैं। वो कंपोस्ट का पिक्चर है। ये सारे बर्ड्स एक्चुअली कांडला के बर्ड्स है। हमारा प्रयास ये है कि यहाँ आसपास गुजरने वाले बर्ड्स में 70% बर्ड को अपने कांडला में बुला के रखें। और जो पेड़ लगाते हैं, पेड़ में ये साइकिल कंप्लीट करने के लिए सांप, मेढक, चूहा, पक्षी सारे कोएग्जिस्ट करें वहाँ पे। आपको पता है कच्छ नागराज भी कहा जाता था, यहाँ नागों का राज्य हुआ करता था, तो वो इस वन से क्यों वंचित हो। ये सारे एक्चुअल पिक्चर्स हैं जो आप देख रहे हैं आज के दिन में। ये सारे एक्चुअल पिक्चर्स हैं हमारे पॉन्ड्स के पास। ये पिक्चर्स लिए गए हैं। ये हमने स्केटिंग रिंग बच्चों के लिए डेवलप किया। कोविड के टाइम में स्केटिंग का बहुत प्रॉब्लम, लोगों को लगा स्केटिंग कैसे होगा। हमने एक स्केटिंग रिंग बनाया। उसी स्केटिंग रिंग में हमने बास्केटबॉल का भी कोर्ट बना दिया है, और बास्केटबॉल के साथ साथ वहाँ पे अब वॉलीबॉल का भी कोर्ट बना रहे हैं। तो बच्चों के लिए अच्छी खासी एक्टिविटी हो गई है। पार्क बच्चों के लिए किलकारी पार्क डेवलप किया है। किलकारी पार्क में सारे के सारे बच्चे आते हैं। नाउ कमिंग बैक, कोविड के टाइम में हम लोगों ने जो एफर्ट किया था वो एफर्ट डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है। फूड डिस्ट्रीब्यूट करना, स्कूल के बच्चों को अडॉप्ट किया है, वहाँ जाना। ये हमने इनफैक्ट आपको पता है कि जब हम लोग आज तक पीपी किट नहीं बनाता था इंडिया में, कोविड के टाइम में पीपी किट या प्लास्टिक किट्स जिसमें बॉडी को डिस्पोज करना है, कांडला ने पहल ली। हमने पहल ही नहीं ली, बाकायदा जाके डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को हैंड ओवर किया। जितने रिक्वायरमेंट थे सारे लोगों ने गुजरात के ट्रेडिशन के मुताबिक दिन रात कम करके उनको किट डोनेट किया, बिना कोई पैसा लिए हुए। ये सारे डोनेशन किट के हैं जो हम लोग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को जाकर दे रहे हैं, हमारे स्टाफ जाके दे रहे हैं। सारे लोगों को ड्राई राशन देना, जो यहाँ से गुजर रहे हैं एमसीसी के लोगों को हेल्प करना, पानी देना, हर किसी को, जितने लोग हैं उनसे हमने कोविड के टाइम में जितनी भी सुविधाएं दे सकते थे सारी की सारी हमने सुविधा दी है। विदेशों के लोग आने के बाद हमारे कांडला के एक्सपेरिमेंट को पूछ रही हैं। ये हमारी युगांडा की हाई कमिश्नर है, ये आई हैं अपने टीम के साथ, और कई कासेज में जो आप कर रहे हैं हम युगांडा में रिप्लिकेट करना चाहते हैं। तो हमने उनको मॉडल बना के दिया है, और धीरे धीरे हम विदेशों में भी अपने मॉडल को रिप्लिकेट करना चाहेंगे। नाउ कई चीज़ें बताई है सत्यदीप ने, और इसको भी मैं स्किप करूंगा। हमारे पास 100 एकड़ का लैंड अभी खाली हुआ जो हमने एमएमटीसी और बाकी लोगों से लिया, और इस 100 एकड़ के लैंड में स्टेट ऑफ द आर्ट हम लोग डेवलप कर रहे हैं फैसिलिटीज़। और स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी डेवलप करने के लिए हम यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को करेंगे। वो क्या करेंगे मैं आपको आगे बता देता हूँ। ये प्रकृति वन का उद्घाटन है। ये सारे उद्घाटन से हैं, ये सारे पिक्चर्स हैं जो हमारे जितने भी मैं ये मान के चलता हूँ जो हमारी कम्युनिटी है तो हर कोई उद्घाटन करेगा। वो एक बड़ा पुराना केवल डीसी करेगा, मैं कि नहीं, डीसी एक करेगा, उसके साथ हमारे पारस जैन जी भी करेंगे, हमारे चलानी साहब करेंगे, हमारा दीपक करेगा, सत्यदीप करेगा। सो वी ऑल, इट्स ए कम्युनिटी लिविंग, वी ऑल विल डू इट, एंड दैट्स हाउ वी आर डूइंग इट हियर। ऑटोमेटिक सिक्योरिटी हॉस्टल बना रहे हैं 150 लोगों के लिए, ताकि सिक्योरिटी अंदर रह सके। अभी तक अच्छे सिक्योरिटी वाले इसलिए यहाँ नहीं आते थे कि रहने का इंतजाम नहीं था, रहना बहुत महंगा था। हमने कहा मैं आपको हॉस्टल बना के दे रहा हूँ, जिस हॉस्टल में आप यहाँ रहेंगे उससे जो यूनिट्स हैं उनमें भी एक सुरक्षा की भावना आएगी। तो उसका ऑलरेडी हमने इनॉग्रेशन कर दिया, इट्स गोइंग।
ग्रीन सर्टिफिकेशन के बारे में सत्यदीप ने आपको बताया है, हमने मेंबरशिप ले लिया है ग्रीन सर्टिफिकेशन का इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के साथ, एंड इन ऑल प्रोबेबिलिटी वी विल बी वन ऑफ द फ्यू SEZs पॉसिबली गिफ्ट को एक शायद मिला हुआ है, और बिना खर्च के हम लोग ये ग्रीन सर्टिफिकेशन एक्वायर करेंगे फ्रॉम इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल, द ओनली SEZ आफ्टर गिफ्ट टू गेट दिस इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल। इनफैक्ट दिस इज कार्बन क्रेडिट हम लोग अर्न करने जा रहे हैं, उसके लिए हम लोगों ने अप्लाई किया है, और कार्बन क्रेडिट कैसे अर्न कर सकते हैं। साइनेजेस प्रोजेक्ट्स के बारे में है, साइनेजेस प्रोजेक्ट्स हमने दे दिया है, और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ किसी जगह के डेवलपमेंट के बारे में होती है वहाँ के साइनेजेस और स्ट्रीट फर्नीचर कैसे हैं। साइनेजेस स्ट्रीट फर्नीचर का लगाने का भी काम हम शुरू करने जा रहे हैं। स्ट्रीट फर्नीचर अलग अलग जगह पे, मॉडर्न टॉयलेट्स, महिलाओं के लिए टॉयलेट्स, हैंडीकैप्ड के लिए टॉयलेट्स, उनके बैठने की जगह, सारी चीज़ें करने जा रही हैं। नाउ व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड? मैं आपको वे फॉरवर्ड में छोटी सी चीज़ें बताना चाहूँगा, एंड विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहली चीज़ क्या है कि हमारे यहाँ पे जो कई यूनिट्स थे उनके बारे में बड़े निगेटिव इमेज थे। जैसे कपड़े का क्या इमेज था? वॉर्न क्लोथिंग का इमेज था। कपड़े का इकलौता इमेज था कि अगर आप किसी तरीके से, मैं जब आया तो आने के पहले कुछ दिन मैंने मुंद्रा में गुजारा था, तो जब न्यूज़पेपर पढ़ता था उसमें सिर्फ यही नहीं देखता था इतने कपड़े की ट्रक चोरी करते हुए जाने की अंदेशा। मैंने कहा ये कपड़े का ट्रक चोरी करके क्यों ले जाते हैं? कहते हैं कि कपड़े फाड़ने की जगह पे ऐसे ले जाएंगे तो ज़्यादा पैसे मिलते हैं। तो पहले तो हमने उसको बंद करवाया, बट बंद करवाना कोई सोल्यूशन नहीं होता है। आप किसी भी यूनिट को डंडे के बल पे आप कंप्लायंस नहीं ले सकते हैं। कंप्लायंस ले सकते हैं जब आप उसको वे फॉरवर्ड बताएं। तो कपड़े आज तक जितने चिथड़े जाते थे वो सारे चिथड़े जब पानीपत जाते थे, पानीपत में जाकर उनके साथ लो क्वालिटी यार्न बनता था। हमने क्या कहा? हमने कहा एक काम करो, उस समय तक मेरी खुशकिस्मती थी कि सेल्यूलोज का इन्वेंशन हो गया था। सेल्यूलोज क्या है? सेल्यूलोज है एक केमिकल है जो कपड़े में डालेंगे तो उस कपड़े से न्यू यार्न पैदा होते हैं। आज कपड़ा हम लोग जो शर्ट पहनते हैं, सुबह में जब वर्कआउट करते हैं तो एक शर्ट पहनते हैं, ऑफिस जाने के लिए शर्ट पहनते हैं, शाम को सोने के लिए शर्ट पहनते हैं, और अगर आप अपवर्डली मोबाइल हैं तो कई लोग बड़े गर्व से कहते हैं मैं एक कमीज को 2 बार से ज्यादा नहीं पहनता हूं। लेकिन आप जब जितने कमीज हैं 95% लैंडफिल साइट पे जाते हैं। तो जो सर्कुलर इकोनॉमी की बात करते हैं उसमें कपड़े का सबसे बड़ा योगदान है, और जब कपड़े का योगदान सबसे बड़ा हुआ तो जो चीज पहले पानीपत में जाता था अब वो मिलों में जाने लग गए, बिकॉज नए कपड़े निकलने लग गए। और आपको शायद ये जान के खुशी होगी कि कांडला के कपड़े सेल्फ रिजेज जो यूके में ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पे है वहां बिकने लग गए इससे बनाए हुए। आपको ये जान के खुशी होगी कि टाइम्स के सितंबर इशू में सेल्यूलोज को इस सदी का 100 बेस्ट इन्वेंशन का अवार्ड मिला है, और उसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी कौन होगा SEZ का पूरे इंडिया का? वो है कांडला। और जब मैं प्रेजेंटेशन दे रहा था बोर्ड ऑफ अप्रूवल में तो हमने कहा कपड़े को इस निगाह से देखना छोड़ दीजिए। उसी तरीके से प्लास्टिक की बात मैं बता दूं, आज प्लास्टिक के बारे में लोग क्या कहते हैं? प्लास्टिक क्या होना चाहिए? एग्लोमेरेट ग्रैन्युल्स, वही बना के निकालते हैं। लेकिन प्लास्टिक का कितना काम है मैं आपको अभी बताने जा रहा हूं एरोपोनिक्स का। इनफैक्ट कैलाश बहुगुणा जी बैठे हुए, वहां पे R&D सेंटर हमने सेटअप किया है एरोपोनिक्स का। आपको पता है एरोपोनिक्स क्या होता है? जो कच्छ शापित भूमि है इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? इस भूमि पे खेती नहीं हो सकती है, फर्टाइल नहीं है। तो इसके बदले क्या करें? अगर हम भूमि को ही नहीं यूज करें तो खेती बड़ी अच्छी हो सकती है ना। भूमि को यूज नहीं करने का मतलब क्या है? सॉइललेस कल्टीवेशन। सॉइललेस कल्टीवेशन का क्या मतलब है कि आप मिट्टी के अलावा केवल मिनरल्स एंड पानी से करें। अब पानी की भी यहाँ पे कमी है। जिस तरीके से मैंने आपको ग्रीन कल्टीवेशन का बताया जिस तरीके से हुआ, उसी तरीके से हमने एरोपोनिक्स के बारे में कहा। पानी यहाँ नहीं होता है। अब पानी नहीं होता है तो क्या करें? तो 5% पानी को यूज करें, जो अभी यूज होता है 100%, और उसी 5% पानी को यूज करते रहे। ये टेक्नोलॉजी कहाँ की है? ये नासा की टेक्नोलॉजी है, विच इज प्रूवन टेक्नोलॉजी। अगर आप मार्स पे कभी जिंदगी जाएगी, आप बसाएंगे तो वहां पे एरोपोनिक्स होगा, क्योंकि एरोपोनिक्स में आप जो रूट्स है उस पर स्प्रे करते हैं, और स्प्रे करने के बाद जितना लेट्यूस है, जितनी झाड़ी वाली चीजें हैं, करीब 200 तरीके के सब्जियां हैं, पेड़ हैं, वो सारे आप उससे पैदा कर सकते हैं। तो हमने सोचा कि इसको करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? हमने कैलाश बहुगुणा जी को कहा कैन वी स्टार्ट? ही सेड इफ यू आर विलिंग टू, आई शेयर योर विजन, लेट्स स्टार्ट। और 1 मार्च 2021 को हमने उसका फाउंडेशन रख दिया है। उसका फाउंडेशन रखने का कारण क्या था? कारण यह था कि SEZ में बैठ के तो हम खेती नहीं करेंगे, लेकिन अगर SEZ एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस अपने अगल बगल एरिया के लिए नहीं बनता है तो उस SEZ के रहने का कोई मतलब नहीं है। अगर आज हम
कपड़े को हम अगर वहाँ पे सेटअप करके सूत सप्लाई कर रहे हैं इंडस्ट्रीज में, और अगर यहाँ पर एक हमारे पास ट्रेन मैन पावर नहीं रखते हैं, अगर हम यहाँ पर एक इंडस्ट्री सेटअप नहीं करते हैं जो इसके सूत को यूज कर सकेगा, तो हम स्पोक और हब की तरह काम नहीं करेंगे। मीनिंग देयर बाय दैट अगर टेक्सटाइल इंडस्ट्री को यहाँ आसपास सेटअप नहीं कर पाएंगे तो हमारे कपड़े जो आते हैं पानीपत भेजना बेकार का चीज होगा। तो हमारा आज ये एम है कि इस वॉर्न क्लोथिंग के द्वारा हम हब बनते हुए हम सैटेलाइट कपड़े का एक मिल सेटअप कर पाए। उसके लिए 3 चीज जरूरी था। पहली चीज ये है कि जमीन सस्ती मिले, जो जमीन सस्ती अंजार में आसपास मिलने के लिए तैयार है। दूसरा, ट्रेन मैन पावर। तो हम ऑलरेडी इस प्रोसेस में लग चुके हैं, हमारे पास करीब 27,000 मैन पावर है। हमने मिनिस्ट्री से बात कर रखी है और ये वायदे कस्म वाली बात है। मिनिस्ट्री हैज एग्रीड टू ट्रेन दैट मैन पावर। नाउ व्हाट इज द ट्रेनिंग ऑफ दैट मैन पावर? ट्रेनिंग ऑफ मैन पावर इन्वॉल्व्स 2 थिंग्स। वन इज अपस्किलिंग, अदर इज रीस्किलिंग। तो अगर आप केवल सूत निकालने का काम कर रहे हैं तो अपस्किलिंग इज रिक्वायर्ड, लेकिन उसे कपड़े बना रहे हैं तो रीस्किलिंग इज रिक्वायर्ड। So we are collecting from all the units of KASEZ the requirement of the worker, which we are going to train in upskilling and reskilling. आप सोचिए, जब चाइना को लोगों ने बाइकआउट किया कोविड के कारण, एप्पल से कहा गया आप छोड़ के जाइए, एप्पल ने रिफ्यूज कर दिया। पता है क्यों? उसने कहा हमारे पास जो वर्क फोर्स का रिक्वायरमेंट है वो चाइना में है। हम आज कच्छ की भूमि को वो वर्क फोर्स का रीस्किलिंग अपस्किलिंग से करना चाहते हैं ताकि वो सारी इंडस्ट्री में फिट हो सके। प्लास्टिक इंडस्ट्री का इसी तरीके से जो हम एरोपोनिक की बात कर रहे हैं, एरोपोनिक का अधिकतर मैन्युफैक्चरिंग हमारे एसीजेड यूनिट के अंदर होगा, जो ट्यूब्स होते हैं स्प्रे करने के लिए। तो हम यहाँ के एग्रीकल्चर को रिवोल्यूशनाइज करना चाहते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री ने कहा एग्रीकल्चर को इंडस्ट्री का दर्जा देना है, तो अगर एक जगह से 22 गुना तक, क्योंकि ये 22 लेयर पे होता है वर्टिकल, 9 से 22 लेयर तक, अगर उसी एक जगह पर बिना मिट्टी को यूज किए हुए आप 22 लेयर पे 4 खेती कर सकते हैं 1 साल के अंदर, तो आप सोचिए कृषि का दर्जा कहाँ पे होगा। और यहाँ पे पोर्ट का आसपास पड़ा हुआ है, पोर्ट से कोई भी चीज बाहर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो हम आज एरोपोनिक का जो R&D सेंटर यहाँ सेटअप करने जा रहे हैं, प्लास्टिक का R&D है, कपड़े का R&D है। उसका पर्पस ये है कि एसीजेड के कारण आसपास की जितनी इंडस्ट्री है उनको हम मोबिलाइज कर सके और वहाँ के लोगों को न सिर्फ अपस्किल और रीस्किल कर सके, बल्कि यहाँ पे रोजगार के नए अवसर भी पैदा करें। और एसीजेड का इस मामले में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहना पड़ा है। बट जो सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैं इनफैक्ट स्लाइड को छोड़ देता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं कहना चाहता था, अपस्किल रीस्किल के बारे में बात है, वो मैं कहना चाह रहा था कि हमने कोशिश ये की है कि कुछ सेक्टर आइडेंटिफाई किए हैं और एक नई पहल लेके जा रहे हैं जो आज आप लोग के द्वारा बोलने जा रहे हैं। मेरी पिछले इस सोमवार को आदरणीय गौतम अदानी जी से बात हो रही थी। मैंने गौतम अदानी जी को कहा कि करीब 2.5 घंटे की हमारी मीटिंग थी। मैंने कहा कि आप एक बात बताइए, आपका एसीजेड भर क्यों नहीं रहा है? तो उन्होंने कहा कि लोग नहीं आ रहे हैं। हमने कहा कि शायद हम मार्केटिंग नहीं कर पा रहे हैं। ना, मार्केटिंग का क्या मतलब है? आप लोगों में तो मॉल गए हैं, कभी कोई मॉल गए हैं? मॉल में क्या होता है? मॉल का जब एडवर्टीजमेंट आता है तो आता है हमारे पास एंकर ब्रांड है, एडिडास, नाइकी, जो टॉप ब्रांड्स होते हैं रिटेल में, उनको वो सस्ते में जगह देते हैं, 10 साल के लिए, 20 साल के लिए जगह देते हैं। आप 20 साल तक हम आपका किराया नहीं लेंगे, बिजली में इतनी कटौती करेंगे, वो आते हैं। उसके चलते पुल फैक्टर होता है एंकर ब्रांड। हमारे एसीजेड में आज तक स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज हैं क्योंकि हम लोग एंकर ब्रांड यूज नहीं कर रहे हैं। तो हमने कुछ एरिया आइडेंटिफाई किया है, उस एरिया के मैन्युफैक्चरर को हम एंकर ब्रांड के रूप में एसीजेड में इन्वाइट करेंगे और एसीजेड में जब इन्वाइट करेंगे तो उसके चलते सैटेलाइट इंडस्ट्री डेवलप होगी। एंकर ब्रांड किस एरिया में करेंगे? पहला एरिया है एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। सारे फ्यूचर के व्हाट इज एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग? 3D CAD से आप सारा सामान बना सके। फॉर एग्जाम्पल, आज ये जो पेन बनाते हैं, इस पेन के लिए आपको प्लास्टिक की जरूरत पड़ती है, लोहे की जरूरत पड़ती है। जो एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग है, दैट्स फर्दर ऑफ 3D प्रिंटिंग, मीनिंग दे बाय लिक्विड रेजिन को मैनिपुलेट करके आप सामान बनाते हैं। कार्बन जो कंपनी है उसके ट्रेडमार्क के अंदर एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। हमें उनसे बात करनी पड़ेगी बिकॉज एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग में जितना भी साइन है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट नॉर्म्स हैं, चीज़ों को मनाने के लिए क्या इनपुट होना चाहिए, सारा तोड़ दिया है। दूसरा, बड़ी छोटी सी बात बताइए, मैंने आपको एरोपोनिक्स और एक्वापोनिक्स और हाइड्रोपोनिक्स के बारे में बता दिया है किस तरीके से करेंगे। तीसरा, जो सबसे छोटी सी चीज़ है, बैटरी। आपको पता है बैटरी का क्या मतलब है? इंडिया, आपका जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल इंडिया में आ रहा है उसमें बैटरी का कॉस्ट कितना पड़ता है? 1/3 कॉस्ट केवल बैटरी का है, 30%, और बैटरी बनती नहीं है। आप यहाँ पे बनाएंगे पूरा इलेक्ट्रिकल व्हीकल, आप सेटअप करना चाहते हैं टेस्ला, और बैटरी नहीं बनाएंगे। और ये बैटरी का हर में यूज होता है, यूएवी में यूज होता है,
आप जिस चीज़ में कंप्यूटर में यूज होता है, आपका जो भी बैटरी, लिथियम बैटरी जो होती है, जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली बैटरी है, उनको सेटअप करना आज के दिन में सबसे ज़्यादा जरूरी है, जिस पे हमने इन्फोसिस नहीं किया है। चौथी चीज़, रिसोर्स इफिशिएंट ब्रिक्स। आपको पता है रिसोर्स इफिशिएंट ब्रिक्स, मैं इन चीज़ों को इसलिए ले रहा हूँ कि मैं SEZ को एज ए सेंटर ऑफ एक्सेलेंस सेटअप करना चाहता हूँ, न सिर्फ एक्सपोर्ट्स के लिए, बल्कि प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से कहा कि SEZ सेंटर ऑफ एक्सेलेंस होना चाहिए फॉर द DTA यूनिट एज वेल। आसपास के यूनिट को कैसे इफेक्ट करेंगे। ईटा के बारे में आपने सुन रखा है, आपको पता है मैकेंजी का एक स्टडी है जिसके मुताबिक 70% GDP 70% शहरों से आएंगी, और उसके लिए कितने मकान और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में कितना 900 मिलियन स्क्वायर फीट की जरूरत होगी अगले 4 साल के अंदर। अब ये कैसे होगा? ईंट से होगा। ईंट में हमारा सारा फायर क्ले होता है, आग से होता है, लेकिन हम लोग रिसोर्स इफिशिएंट ब्रिक्स की बात नहीं, उसके चलते 10-10 जहां ईंट बनता है ना, वहां की जमीन बंजर हो जाती है। तो आज उस ईंट को बदलना है, और वो ईंट बदलने के लिए हम लोग रिसोर्स इफिशिएंट ब्रिक्स की बात कर रहे हैं। रिसोर्स इफिशिएंट ब्रिक्स अगर बनने लग जाएंगे तो आज के दिन में ईंटों का, इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आफ्टर चाइना ऑफ द ब्रिक्स। हम ईंट बनने के तरीके को बदलना चाहते हैं, इसके R&D को सेटअप करना चाहते हैं। ड्रोन्स और अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम, ड्रोन्स आज हर चीज में यूज होता है, 94% अभी मिलिट्री में यूज होता है, बट सिविल में हर जगह यूज होने लग गया है। आपने देखा होगा कोका कोला ड्रोन आके डिलीवर कर रहा है, लेकिन आज ड्रोन के मैन्युफैक्चरिंग के बारे में लोग कहते हैं 5 बिलियन का मार्केट केवल इंडिया में ड्रोन का है, लेकिन ड्रोन हमारे SEZ में आता नहीं है। हम एंकर ब्रांड के रूप में ड्रोन मैन्युफैक्चरर को लाना चाहते हैं। इनफैक्ट गौतम अदानी ने कहा उनका UAV ऑलरेडी हैदराबाद में कर रहा है। मैंने कहा आप अपने जगह पे लेके आइए। मैंने टाटा को कहा आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और डिजिटल डिवाइस को नीदरलैंड में सेटअप किए हैं, आप यहाँ लेके आइए। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा IPR का वायलेशन होगा। हमने IPR का 27,001 लिया है, सर्टिफिकेशन लिया कि यहाँ से IPR का वायलेशन नहीं होगा, इसलिए हमने सर्टिफिकेशन लिया है। और हर जोन को ये सर्टिफिकेशन लेना मैंडेटरी करते हैं कि IPR की लीकेज वहाँ से नहीं होगी। जब ये गारंटी हो जाएगी, इंटरनेशनल गारंटी हो जाएगी, उसके बाद लोग टेक्नोलॉजी देने के लिए यहाँ पे तैयार होंगे। एक्सोस्केलेटन, व्हाट इज एक्सोस्केलेटन? ये सब मैं एंकर ब्रांड की बात कर रहे हैं। आपने देखा होगा बोझ ढोने के लिए आर्मी को आजकल एक्सोस्केलेटन बनने लगे हैं। पहले हाथ जयपुर फिक्स आते थे जो हाथ नहीं चलते थे, अब हाथ चलने लग गए हैं दिमाग से सोचिए। वो एक्सोस्केलेटन का फील्ड है जिसके मुताबिक आदमी के एफर्ट को मशीन रिप्लिकेट करता है। मतलब ऐसा नहीं कि मशीन अलग से करता है, रोबोटिक्स नहीं, वो आदमी के साथ जुड़ा होता है और उसके कारण बोझ उठा सकता है। और आज एक्सोस्केलेटन का फैक्ट्री में हर जगह यूज हो रहा है ताकि आप कई गुना बोझ उठा सकते हैं। आप इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग फॉर फूड प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग आज हमारे में 95% फूड सड़ जाते हैं क्योंकि हम लोग 98% इक्विपमेंट फॉर मैन्युफैक्चरिंग फूड प्रोसेसिंग बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। और आज इसकी कितनी जरूरत है, मैंने कहा आज एंकर ब्रांड में टॉप मैन्युफैक्चरिंग इसके लिए हम लेके आएंगे। इंडस्ट्रियल रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन के बारे में मैंने आपको बता दिया। नैनो टेक्नोलॉजी, अब्दुल कलाम प्रेसिडेंट ने कहा था कि अगर फ्यूचर की कोई टेक्नोलॉजी है तो नैनो टेक्नोलॉजी है। नैनो टेक्नोलॉजी का हर जगह पे इंप्लीकेशन है, चाहे आपके वाटर फिल्टर में हो, वहां से लेकर सारी इंडस्ट्री में है। बट नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में हम कोई बात नहीं करते, कोई इंडस्ट्री यहाँ पे नहीं आता है। मैं इसके अलावा नैनो टेक्नोलॉजी के अलावा एक चीज और बता दें, टेक्निकल टेक्सटाइल। टेक्निकल टेक्सटाइल के बारे में सुना है आपने? मेडिकल डिवाइसेज एंड टेक्निकल टेक्सटाइल। आज के दिन में टेक्निकल टेक्सटाइल का इंडस्ट्री में यूज होता है। आज के दिन में टेक्निकल टेक्सटाइल का जो बांध बनाते हैं वहां पे यूज होता है। आपके पैर में अगर कोई रोग होता है टेक्निकल टेक्सटाइल से बांधा जाता है। मेडिकल इंडस्ट्री हर जगह टेक्निकल टेक्सटाइल का यूज होता है, लेकिन हम लोग टेक्निकल टेक्सटाइल को आजकल यूज नहीं करते। जो बॉटल के प्लास्टिक्स हैं उससे टेक्निकल टेक्सटाइल बन सकती है, जो नेचुरल है उससे भी बन सकती है, और टेक्निकल टेक्सटाइल में सिर्फ 13% इंडिया के पास है। सो वी वुड लाइक टू, अदानी ने टेक्निकल टेक्सटाइल नहीं हो पाई है उसकी। ये 11 जो सेक्टर जिसको हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया है, इसको हम एंकर ब्रांड सेक्टर फॉर टुमारो कह रहे हैं। और हमारी बोर्ड ऑफ अप्रूवल से ये दरखास्त रहेगी कि इन सेक्टर को इनवाइट करने के लिए स्पेशल कंपनसेशन दिया जाए ताकि उनको 20 साल के लिए फ्री लैंड देंगे, ताकि ये पुल फैक्टर के रूप में दूसरी इंडस्ट्री को ला सके। नंबर 1। नंबर 2, इसका इफेक्ट ये होगा, ये सारे के सारे हब की तरह काम कर सकते हैं ताकि स्पोक में अगल बगल सैटेलाइट इंडस्ट्री डेवलप कर सकेगी। अब सोचिए एरोपोनिक्स अगर सक्सेसफुल हमारा R&D हो गया, पूरे कच्छ में हम एरोपोनिक्स कर सकते हैं और हमारी प्लास्टिक इंडस्ट्री का कितना चल निकलेगी। अगर कपड़े के सूत नए कपड़ों की तरह यूज कर सकते हैं तो यहाँ पे बिकॉज आपके पास ट्रेन मैन पावर होगा, आपके पास गुड बिजनेस इन्वायरमेंट होगा गुजरात का, आपके पास रॉ मटेरियल होगा,
आपके पास कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए सरकार पैसे दे रही है, फिर आपको प्रॉब्लम क्या रह जाएगा? तो हमारा एम आज जब हम कासेज के बारे में बात कर रहे हैं तो आज हम गुजरात के बारे में बात कर रहे हैं। अब तक हम जितनी बातें करते आए थे, हम ये कहते आए थे कि हम कांडला स्पेशल इकोनॉमिक जोन में ये डेवलपमेंट करेंगे, और आज हमारा कमिटमेंट ये है कि हम ऑफ कोर्स कांडला स्पेशल इकोनॉमिक जोन में डेवलपमेंट करेंगे, बट वो डेवलपमेंट केवल कांडला स्पेशल जोन के लिए नहीं होगा, वो हिंदुस्तान के लिए होगा। कम से कम गुजरात के लिए तो आज हम इस रेवोल्यूशन की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो जितनी भी फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी की बात की है, जिस पे हम काम कर रहे हैं, कर्मयोगी मिशन के अंदर प्रधानमंत्री का जो कर्मयोगी मिशन है उसके अंतर्गत जाकर जब हम मार्केटिंग कर रहे हैं तो आज हमारे पास पावर है कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी डीसी के पास सिंगल विंडो क्लियरेंस के अंदर आती है। मेरे पास कोई एक्सक्यूज भी नहीं है कि मैं नहीं कर पाया। तो मार्केटिंग हो, ब्रांड डेवलपमेंट, कांडला का ब्रांड डेवलपमेंट, लोग कहते थे कांडला का मतलब क्या था? कांडला का मतलब था कि वहाँ पे रेगिस्तान है। आज कांडला का मतलब है वहाँ पे हरी भरी जमीन है। हम वहाँ पे स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी दे रहे हैं। हम वहाँ पे आपको 20 साल के लिए मुफ्त जमीन देंगे अगर आप इस मिशन के अंदर आते हैं, BOSS स्पेशल डिस्पेंसेशन लेके। इनफैक्ट श्री गौतम अदानी से मैंने वायदा ले लिया है कि आप इस मिशन के अंदर लोग को लेके आएंगे, हम भी आपको मुफ्त जमीन देने के लिए तैयार हैं। तो आज एक मिशन मोड में हम लोग हैं और गुजरात के मिशन मोड में है। इसकी शुरुआत हम कासे से करने जा रहे हैं क्योंकि आज हमें किसी स्टेट गवर्नमेंट से क्लियरेंस की जरूरत नहीं है। लेकिन इन सारी प्रिविलेजेस के बावजूद अगर ये फायर हम नहीं कर पाए, शायद हमें वो क्षमता नहीं है कि हम एक रिवोल्यूशन ला पाए। इसलिए आज जब आपके सामने हम आ रहे हैं, ये टाइम्स के अंदर ये जो आपको मैंने दिखाया, ये सेल्फ रिजेंस हमारा कांडला का वो क्रिएट किया गया है। ये वहाँ ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पे टाइम्स मैगजीन का ये देखिए, आप इनवॉइस से मिल्स को जा रहे हैं फाइबर, जो यहाँ से जो पहले हुआ, उसने मैंने वो कहते हैं रैग्स टू रिचेज की जगह पे रैग्स टू रिचेज कहा है। मतलब पहले दरी में जाते थे, अब सेल्फ रिचेज में जा रहे हैं। तो रैग्स टू रिचेज स्टोरी है हमारी। ये सारे साइकिल हमने कहा है कि आज के दिन में शायद अगले 2 साल के अंदर जोन के अंदर मोटराइज्ड व्हीकल सिवाय इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कोई नहीं आएगा। मैं खुद साइकिल से चलता हूँ, हम सारे लोग साइकिल पे चलेंगे और साइकिल नॉन मोटराइज्ड व्हीकल को प्रमोट करना है ताकि हम लोग उसकी महत्ता को जान सके। हम लोग ये हमारी बिल्डिंग, जितनी बिल्डिंग से सारी बिल्डिंग को ग्रीन बिल्डिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं। 1 मेगावाट का ऑलरेडी प्रोडक्शन हो रहा है और उसके अलावा जो सिक्योरिटी हॉस्टल भी बना रहे हैं उसमें सारे सोलर नोड्यूल्स डाल रहे हैं ताकि वो बिल्डिंग अपनी बिजली जनरेट करके खुद सबको बिजली प्रोवाइड करे। और कोई भी बिल्डिंग आज के बाद से अगर कांडला में आ रही है, इट हैज टू जनरेट इट्स ओन इलेक्ट्रिसिटी। इतना आपके पास सूरज की रोशनी है, अगर आप उसको यूज नहीं करना चाहते हैं तो शायद आप में किसी क्षमता की कमी है। ये आपको बताया लोरा टेक्नोलॉजी, लोरा टेक्नोलॉजी के अंदर है कि अगर आपका वहाँ पे प्लेट खराब है, प्लेट नहीं चल रहा है या कोई प्लेट उखाड़ के ले जा रहा है, तुरंत आवाज़ करने लग जाता है, बताएगा। और उसके अलावा स्ट्रीट स्मार्ट लाइटिंग का हमने ऑलरेडी अवार्ड कर दिया है, दे दिया है, NBCC में काम शुरू कर दिया है। हमारा एक कोना भी अंधेरा नहीं होना चाहिए, हर कोना जगमगाता होना चाहिए। ये हमारा 100 एकड़ का डेवलपमेंट का प्लान का है जो हम लोग डेवलप कर रहे हैं, फाइनलाइज हो गया है, डेवलपमेंट शुरू हो रहा है। ये हमारा जो आज बेस्ट अवार्ड हमने दिया है जाइडस को, उनके साथ मैंने बताया कि हम लोग शुरू कर रहे हैं फॉर कल्टिवेशन एट 22 लेयर्स ऑफ एरोपोनिक्स एंड वी हैव स्टार्टेड ऑलरेडी डूइंग दैट। 150 बेड सिक्योरिटी हॉस्टल का ये है जो हमारा प्लान होके ऑलरेडी हमारा कार्यरत हुआ। एंड दैट्स द स्मॉल थिंग, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हिच आई वुड लाइक टू टेल ऑल ऑफ यू इज दैट आज हमारे साथ सबसे अच्छी बात क्या है कि हमारे साथ हमारे जो मंच पे बैठे हैं, मैं एक फ़ोन उठाता हूँ, उनके साथ कोऑर्डिनेशन इतना अच्छा होता है। आज आप सारे हैं जो एक बार आपसे कहता हूँ ये करके देखिए तो आप करने के लिए तैयार हो जाते हैं। एक मीडिया इतनी अच्छी है, शायद पिछले 1 साल में मुझे नहीं लगता है इसने कभी कोई निगेटिव रिपोर्टिंग की होगी। आज आप सबका साथ है, ये साथ निभाते रहिए और मैं आपको वायदा करता हूँ कि स्वर्ग यहीं पे होगा। और मैं आपको वायदा करता हूँ कि देवयानी के कहे हुए शब्द गलत होंगे और कच्छ फिर से देवताओं के गुरु के पुत्र के रूप में सम्मान पा सकेगा। थैंक यू वेरी मच। सर बहुत बहुत धन्यवाद। आपके आशीर्वचनों से हम बहुत ही लाभान्वित हुए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। Our guest of honor, Shri Pramod A. Vasave sir, is an IRS officer of 1994 batch and presently working as Commissioner CGST Kutch Gandhidham. He joined as
Assistant Commissioner in Mumbai 3 Commissionerate and has got immense exposure in Central Excise, Customs, GST formations while working in various cities, Mumbai, Nasik, Kandla, Rajkot, Gandhidham. I request our guest of honor to please share his dynamic vision with us. Good afternoon. Good afternoon, everyone. Respected Sanjay Mehta sir, respected Dr. Amay Chandra sir, my colleague Commissioner Customs Ravi, Satyajit, and Parasmal Jain ji, Kothari ji, Chelani ji, my colleagues from the Customs Department as well as GST Department, all media friends. Today I'm seeing there's a large number of media people are there, and ladies and gentlemen. In fact, it's very difficult. Actually, Amay Chandra sir से मैं काफ़ी खुल के मजाक से कहता हूँ कि there are two important reasons to always come heartily for this function. सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है कि सर का स्पीच सुनना है. You get so many wonderful ideas, and सर तो अभी R&D शुरू कर रहे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल 57 फाउंडेशन डे मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ सर. और ये कहना चाहूँगा कि सर इतना सारा रिसर्च, सारे प्रोजेक्ट आप लेके आ रहे हैं, आप यहीं पे रहिए अभी 2-3 साल, है? ताकि जो चीज़ें आपने कही है ना, उसको इम्प्लीमेंट भी तो करना है सर, है ना. तो मीडिया ये पूरी दखल ले ले, है? ताकि ऊपर तक मैसेज चला जाए. सर ने काफ़ी चीज़ें खुल के बताई. वैसे व्हाट ही ऑलवेज से कि हम लोग कभी भी इंटरेक्ट करते हैं, मैं सर के पास चला जाता हूँ, आई गो फॉर कप ऑफ टी, एंड सर यही हर बार कोई ना कोई एरोफोनिक्स नई नई आइडिया बताते रहते हैं, एंड इट इज़ सो अमेजिंग, and he puts his heart into that. I'll tell you all your trade from the KASEZ. सर के पास ऐसा है कि he doesn't say this. इनका अपना research material है, he will show you display आपको करके दिखाएंगे. Sometimes he has forwarded me the detail. So really hats off to you, sir. The amount of energy and enthusiasm you are putting into it, and you are actually resource person for all of Kandla, sir. It is for the KPT also, for the taxation department like customs and us also. Sir ne, he told various things about the KASEZ. I'll just tell you about our revival of industry story. We just had 2 bad months because basically our GST revenue mainly comes from the service industry and manufacturing. But we have a biggest revival in this area, sir. Like our GST revenue, surprisingly, we are ahead by 175 crore what we have collected last year. That's a very amazing thing, and the credit goes to mainly the trade, the entire trade that includes your KASEZ trade also. And we are already ahead by last हमारा जो target दिया है उससे भी हम लोग आगे ही चल रहे. So we are going to contribute 100 crore extra. Per annum we roughly correct 1,850 crore. So we are contributing 100 crore extra to the exchequer in the COVID period. So it's a very amazing story. But जो revival of economy का जो example है यहाँ देखने को मिला, the full credit actually it is important because the ports were functional during the COVID period also. That also contributed a lot. But the other service industry and the manufacturing industry, everything is revived. So my best wishes to the industry. Satyadeep has already explained that you already have come to that 1%. Because COVID period में even to talk about this 1% is very important. Because अपने जो economic figure थे, even our economy has crossed that
they are not 1%, but they cross that zero. So it's a great revival story for all of us during this COVID period. I again thank Amey Chandra sir. जिस दिन उनका कॉल आया, I just said sir कि we were just waiting कि during the COVID period there wasn't any function, and he is a gutsy and dynamic person. He said नहीं हमारा function 7 तारीख को होगा. So my best compliment sir. All my good best wishes to the award winners. Award function will be there later on. He has already declared there are 15 awards. So my best wishes, and thank you sir. Thank you very much. Wasave sir, my senior in service, and Amey Chandra sir, as he was telling, we were having a good interaction for a long time. Almost 5-6 years I know him. And then Paraj Jain, I recollect, I think I met him 1 or 2 times in somewhere in the SEZ community. I don't know, I don't remember where. So Sajjit, my junior, and other my colleagues, and the staff of the KASEZ. So this is the first time I am coming for this KASEZ function, even though they were inviting me from 2015 onwards. Every time they compulsory they'll come there Delhi and call, come karke, but I could never make the destiny. So finally I am staying here in the Kandla and Mandar. So that was the this thing. But coming to the, as Wasave sir told, the revival of the industry, like KASEZ is also very much contributed because you have an advantage. You are in an enclosure place. You can do within your place. Even the COVID times, I suppose you people must have been operating some of the industries without any touch with the outside. That is the major concept of this SEZs. Like this is the way we should go forward for the, as the name suggests, the special zone. Starting with this is the Kandla is the first zone in 1965 as a EPZ. Then comes Cochin, then the Falta. So it is like what the people nowadays calling the port-led industrialization. This is the concept we had 57 years back in India. So it's not that only export promotion. The problem with the understanding and the outsiders, what they think that SEZ is for exports. No, it's not exports. It is a concept of port-led industrialization. And all the ports, all the SEZs you see, out 7 out of 7, 6 are at the ports only. So to Delhi nearby, so dry port, so Noida they have given that time. This is the concept. Otherwise, the port-led industrialization, and the idea of coming back in 2000, the SEZ concept has come in the budget of year 2000. So they have come up with something like new idea. We'll go for the special economic zones. So this is not a new concept. World over it is there. It is called free trade zones in the West. Like you have a free trade zones act for the US, and Singapore follows same thing. And there are called free zones. If you call in like Middle East, Dubai and all, they are all called as a free zones. Then go further, there are economic zones. Now the Chinese concept is special economic zones. So you have, every country has this. These are actually called islands of excellence. So they have an island kind of approach. We'll have it one place only to have that industrial concentration. Sometime a sectoral approach, sometime a multi-sector approach. So you are all SEZ units and you are aware of the sector-based SEZs and like that. So we have come up with that. But the difference between the Chinese SEZs and ours is, we have only confined to the small islands. Chinese have gone through a big city or 4 or 5 districts together, including everything. Like in SEZ, you will have everything, like you have a railway station, you have airport, you have seaport,
You have the hotels, you have the market, everything. So the city itself is for them SEZ, so they have developed so far, so fast. But for us, the policy angle or different parameters and the scarcity of land, these things have impeded the SEZ growth. The what we have expected, that much we have not gone. I don't know what is the employment generation. During my time up to around 2017-18, we had roughly around 20 lakhs employment generation on the board after the SEZ Act came. So SEZs were as a policy came in 2000 and 2005 SEZ Act came. So there are a lot of, the SEZ Act itself is a very special act. In India there are only 3 acts which are special acts like NDPS, like this special SEZ, like that only 3 special acts are there. These act, the government wanted to give all overriding powers in the SEZ, where the entrepreneur should have free of mind. He should come, put the his own industry, develop further some more industries. So concept wise well, but development is also there. But when we started getting the private SEZs, somewhere we lacked the policy gone into not as we visualized. So now I think mostly they will be coming with a new SEZ policy. There was a committee by Mr. Baba Kalyani of Kalyani Group Pune was appointed, and we have completely studied everything, how to go about and give the freedom to the entrepreneur in the SEZ, or be it service or manufacture, whatever they are doing. So we wanted to go at a US to make, see, the main thing is 2 things stops the SEZ people. One, they are now not having any income tax benefit. So sunset clauses come from 2017. I think from 2020 and units also sunset clause was there. Then the other one is like they have to achieve net foreign exchange. Like this is also I have argued and at many forums, why it is, why you should earn. Now anybody who wanted to do as industrialist, he want a market. So after China, India is the market. If I don't sell it to the DTA, my products, why I should only export everything, why I should earn the only foreign exchange, why I should not sell it to the Indian market. See, like it's a paradox, like you have a big market of more than that 1.3 billion population, but you look for the small areas, Europe you target, US you target, you tell, yes, you can target, you do that, it is, you are not in the isolation. The present day is the global value chains. It is not that you have interdependency. You have to export also, you have to import also. There is no body can work in isolation in their own country. So that we agree. But for to flourishing SEZs, this NFE clause, I was one of the person, mostly it may go, but person we argued almost 3-4 years. I was in the many places. Even we have argued right before Prime Minister, Honorable Prime Minister, when he called meetings for all these directors and all. See, I am also on there. We have argued. What we were telling is, whatever you want to get the DTA sale, collect only on the value addition at the SEZ, not on the complete value. Now, at present, the Act and rule says you have to pay as if it is imported from. There are so many people, like textile, why it was filed in the SEZs, textile manufacturing, because the textiles of other countries, like you have the Asian treat, SAFTA, all the free trade agreements, you can bring in freely. Whereas somebody has put here, if he wanted to sell it to the Indian customer, he ended up with paying 20-25% duty extra. Whereas somebody manufacturer in the Sri Lanka or Bangladesh, he can bring freely. So the competitive edge of 20% is huge. Nowadays, you know, even you work at the 1%, 2% margins. So if you see that the duty is custom duty, even if you have a barest minimum of 10% BCD and 10% GST, so 20% you will end up on the paying. So we have argued, yes,
you can allow the SEZs to sell the DTA with only on duty chargeable on the value addition. Unfortunately, see, I am on both sides. So our side, we also thought the calculation, how do you get into nitty-gritties of each commodity, what are the inputs, what is the foreign component, what is the DTA component. So revenue, like my own department, so we have found it very difficult to make. So that so I was really on a dilemma. But nevertheless, I still strongly believe SEZ should be given this kind of freedom where they can sell their goods of DTA or export. Wherever they wanted to sell, let them sell it. Then only somebody can come to the, like as Development Commissioner sir was telling, the land is another problem in SEZs. There are huge land chunks and it is not been going. So both sides. Like now, if you go into the Adani SEZ of Mundra, this is 6,500 hectares. And they have really developed everything, roads, rail, airport, everything. You call it, everything is there, right? No, port is excellent port of within one day the vessel will turn over, you can download, upload, anything you can do. Now, he will charge definitely ₹1 crore per acre. So somebody industry who can come there. Same time, in the Kutch area, other side, outside, 10-15 lakhs you get. So therefore, people are not going. We are nearby. So they were also having the problem in getting the units. So who will spend that much on the land itself? Then you have so many sundry costs and everything is there. So that is one area. I think now they have relaxed everything. There is no need of this thing multi-sector requirement. Anybody can place anywhere. So that is where we have to way forward. So little bit further outside what happens, I tell these SEZs have the associations. Like we have the SEZ, there is one SEZ council. So this will participate, represent in the other forums. So I have represented many times in, even we have one Indian Ocean Rim Free Zone Association. So there also we all, we sit together, all countries of the Rim Ocean area. So they do that. And there is one World Free Zone Organization. This is headquarters at Geneva, but the functional is at Dubai. So with the Jabal Ali, that guy, he is the main organizing. But they go, they always, every 2 years, they sit somewhere, they make all the, like what you call Chintan Shivir kind of activity. They do that, they go for the, like for example, we have one of the concept what I learned in the South American, like you have the Chile, Ecuador and Colombia, all those places, Peru, they have a single factory SEZ concept. They call it free zone, single factory. Only huge factory will be there. The factory alone will be the SEZ. There is no question of any interaction. The factory wall itself only the SEZ. That is also to some extent succeeded. But the problem is their GDPs and all very high than us. So they can run it. But for us, the putting like single factory SEZ, I can say the Jamnagar refinery is the one best example in India. That kind of units in all the sectors, if they can keep, then the single factory SEZ also. Then what will happen? Now this managing the SEZ, so many staff, so many people are required. If it is a single unit SEZ, see the lot of the manpower can be reduced. Only maybe 1-2 persons can take care of the entire activity, not like this. You have a big battery of, because every unit requires some help. So you cannot, like KASEZ, he cannot manage with 3-4 people because everybody has some problem, they will approach. So you need officers, you need for everything, you need for shipping bill, you need for bill of entry. Every aspect is being covered, but that is the make. So coming to, as sir was telling, the new 4th generation industrial revolution, like you have agriculture, you have manufacturing, you have the service. Now the 4th is coming, as they are calling it as manufacturing. It's like you have the, like artificial intelligence. The manufacturing industries with high knowledge content.
So knowledge is the main. Manufacturing activity is very less, but knowledge is the main, this one in the new concept of SEZs. They are having the knowledge incentive industries. They call it digital manufacturing, and this is being introduced into the free zones in the next generation. People, they come up in 2018 with this concept, and they thrash like they will be all people will come there from World Trade Organization also. One person will come. Even the World Customs Organization has one director level officer. So they all come. They will be total policy of the multinationals, not like only on that only we catch something and we just turn into our this ones. So the another concept they say is you have to have a sustainable SEZs. You have to sustainable next generation free zones, like you have to integrate with all the regulatory functions and the like as DC sir was telling, Gujarat is the first state to come up with a single window clearance act. Everybody talks about single window, but when the for central subjects development commissioner in the unit approval company, he is a single window. But whereas you come to other regulatory, be it Labor Act or be it pollution, be it what, so many state acts they used to, that is why many a times parliamentary committees where I used to attend, they used to thrash, you don't have, you are not the single window, you have 100 windows or 1,000 windows. Everybody will be behind the industry person that you have to take various permissions, various this one, the labor laws. In fact, we have wanted to integrate with the SEZ. We put one of the state development commissioner as the labor officer. You don't come. So many states, they never agree. Many states, but now slowly every state is falling into this single window. So now state-wise, whatever is there, it will come. In even Tamil Nadu, they have this act, Single Window Clearance Act. So whatever you require for the state level permissions will be given by only one officer. You need not go run around to pollution, run around to the town planning, run around to the industry department, all those. It will come only at one. And whereas in the center side in the SEZ, we are having our own single window, that is unit approval committee. Once the unit approval committee clears, you have gone with everything on the central subjects. So this is where I think the new developments are there. So people will be making, but we always see this as a very good concept, but somehow in the Indian context, not performed as the policymakers have expected. It's nevertheless, it is a big achievement that we have so many SEZs were there. See, all over, you have roughly around 5,000 SEZs, like free zone, free trade zone, whatever units they operate, around 5,000. We ourselves have 550 approvals. That much is not operating. Then 430 were notified, and then around 260, 70 are operating. So I roughly say 5% of the world SEZs we are running, we are having the concept clear, but somewhere down the line, that is why last the NDA 1, they have the last government has appointed this committee, and now they will be ready with the whole new act or whole new kind of this thing. But SEZ Act gives you a lot of protections, I must say, and I have interacted with the law ministry many times for some amendments and all. So it is very tight act, you cannot touch it. It is to make this amendment also, it's a special act, so you cannot even make. So SEZ Act gives you a lot of protection. Only thing we have to tinker with the rules where we have to change completely. Now still I feel some of the old systems in the custom, where in customs we have completely changed, and now we are like the public interface is so more, everything is e level or e-office and e-Sanchit, and no document need to be produced before anybody else have gone. But in the SEZ rule, still you will have that Palana, Tikana, Chalana, Palana memo you have to submit at the gate of the SEZ, and all these kind of things are there.
hopefully, I think during my time I also proposed like that whatever seal, one-time seal you put, एक बार one-time seal unit लगाया, nobody should check. You should go. There is no SEZ gate, there is no port gate. So these kind of processes are now, in fact, sir, in Delhi, they still insist that from Noida it should come under the escort. Yeah. So I being a custom officer on the SEZ side also, I got surprised in the first place. We left everything, now it is in custom, nothing you can straight away. But still that Delhi customs are insisting at it happens at the lower levels. What happened, it don't go to the down below. We speak and all, as a commissioner I speak. If my PO, preventive officer, doesn't understand what the policy, what is happening or what is I am having in mind, so automatically the failure comes. That is what there, if you don't reach there. So that way during my time, you people must be some of them who see I have issued many instructions. The instructions will be issued on the SEZ instructions, must be 80, 90 instructions now are there. Out of that, almost 50%, my 40 or 45 instructions on every subject I have put up and take. The instruction is normally issued with the minister, honorable minister's approval. So we have made a lot of effort to clarify so many things, sir. Be it work from home, what you are calling now. So in 2016 itself, I gave that instruction is there for how to do work from home. What are the conditions, and NASCOM people are behind me, of course. So they wanted to get it done. So we have get done. That is the way you have to way forward for the growth of industry. Ultimate aim, you have to develop, you have to have the country should progress, and it is can be done only maybe like this cluster kind of approach, whatever this the government sees the islands of excellence should remain good islands and make the more, not, if you open more and if you interact with the normal DTA industry more, then this culture, the cultural exchange of these two will make further spoil. That is why we wanted to enclose only. SEZ units, yes, SEZ units. Don't interact with the DTA guys. They have their own operation. They have their, somebody who is operating both the units, they understand very clearly that what are the advantages, disadvantages. That way it's good, and the revival of industry is good. This area, I see the KASEZ or the Adani SZ, they are all doing well. Even as customs, we are already up. Like my targets are all almost achieved. Before March coming itself, I have achieved the revenue targets. So revival I see from last September onwards, it is a good revival. And fortunately, the social distancing, whatever you call in the Kutch area, is more because the huge land and population is less. So we are more like we have become free much earlier than the other cities or other major towns and all that. So that has helped, and then they have got this thing. So other coming to your growth of SEZ, I wish all the units do well and take advantage of your SEZ benefits, and if you well within, I see clear cut of two advantages being SEZ. One is your supplies will be constant, not like any other units where you have to, every time you have to call for a bill of entry and you have to go for wait for this thing coming. But your SEZ, nothing, port to your SEZ gate, it is free, straight constant supplies will come. See, the next advantage is many of them custom duty and IGST. So put together sometime 20% and all you need not pay. And even the during GST regime also, the SEZs have come into fire. The lot many state governments were telling, used to tell, if you wanted to do the export activity, pay duty and take refund. This is the concept in GST world over. Nobody will be given any exemption upright. So pay duty, take exemption. So we have to really put forth a lot of pressure, a lot of tactics to say that these SEZs require the this free kind of thing, not on the, so zero rated duty facility, they feel they should be barest minimum.
If you add the SEZ, you add the EOU, or you add the other importers, so 50% will become zero rated. So GST being the combination for the center and the state, so states have to be agreed. States, most of them, we have fought 3-4 GST council meetings that how the SEZ should get the zero rated. So finally, people prevailed on them, and then they got into this one. I think we are more safe than the other units outside. You have the facility of zero rated this one. So I wish the SEZs will flourish, because I have done this, I am from that SEZ. So 3-4 years I was a director SEZ. So I always have a home feeling with the SEZ community. Thank you very much. थैंक यू सर। आज के इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए जिसका आप सब बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं वो घड़ी आ गई है। जी हाँ, अब आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है एक्सपोर्ट अवार्ड डिस्ट्रीब्यूटर। लेकिन इसके पहले एक छोटी सी आप बीती सुनाना चाहूँगा हमारे एक पुलिस हवलदार की, जिनकी पत्नी भी सिपाही हैं। तो सुनिए, उसी थाने में तबादला हो गया मेरा भी, उसी थाने में तबादला हो गया मेरा भी, जिसमें पत्नी सिपाही थी। अब घर हो या दफ्तर, दोनों जगह लुगाई थी। सीधा सा मतलब था कि तबाही थी, सारा दिन दहशत में काटता था। इधर पत्नी चीखती थी, उधर इंस्पेक्टर डांटता था। वैसे तो ये तबादला मेरी तरक्की थी, पर अब हफ्ते में 2 बार बेइज्जती होनी पक्की थी। क्योंकि अभी पिछले ही दिनों लाठी चार्ज के दौरान उसने ऐसे जुल्म कर दिए, पिछले ही दिनों लाठी चार्ज के दौरान उसने ऐसे जुल्म कर दिए, पब्लिक की आड़ में 2 लठ मेरे भी धर दिए। मैं बोला देखती नहीं पति परमेश्वर हूँ, मैं बोला देखती नहीं पति परमेश्वर हूँ। वो बोली घर चल के आरती उतारूंगी, अभी तो ड्यूटी पर हूँ। जीवन अब मेरे लिए सजाए आफ्ता है, उनके हाथ में डंडा देखकर भाई साहब आज भी दिल कांपता है। एक दिन की बात, पैदा हो गए ऐसे हालात, इधर इंस्पेक्टर उधर पत्नी, दोनों ने एक साथ आवाज़ लगाई। मेरी तो समझ में नहीं आया, पहले किसकी सुनूं, कहाँ जाऊं, नौकरी संभालूं या इज्जत बचाऊं। वो तो शुक्र है इंस्पेक्टर साहब शादीशुदा थे, उनको गृहस्थी के सारे अनुभव पता थे। कहने लगे भाई हमारा क्या है, भाई हमारा क्या है, हम तो आज यहाँ कल दूसरा थाना है, तुम्हें तो शाम को ही घर जाना है। मतलब तुम्हें तो शाम को ही घर जाना है और सारा जीवन इसी के साथ बिताना है। जा पहले पत्नी से पूछ क्या बात है, जा पहले पत्नी से पूछ क्या बात है। अब रो मत भाई, मेरे घर में भी यही हालात है। मेरा क्या, कमिश्नर साहब तक का यही हाल है, होंगे अफसर बाहर, घर में भला किसकी मजाल है। और अब तो डर डर के खोखला हस्बैंड हो गया हूँ, अब तो डर डर के खोखला हस्बैंड हो गया हूँ। नौकरी ज़रूर करता हूँ, मगर ऐसा लगता है सस्पेंड हो गया हूँ। अभी पिछले महीने की बात, दिन था वैलेंटाइन, ड्यूटी थी कंबाइन। मैंने तो वैसे ही पूछ लिया, कहो तो चलें आज शाम कॉफ़ी शॉप में, कहो तो चलें आज शाम कॉफ़ी शॉप में। बोली बंद करवा दूंगी छेड़खानी के आरोप में। नखरे बता रहा हूँ, ये घर नहीं थाना है, यहाँ पत्नी वाला रिश्ता नहीं चलेगा। यहाँ तो ऊपर की कमाई में भी हिस्सा आधा आधा बटेगा। और सच्चाई तो ये है दोस्तों कि मैं हवलदार होकर भी मुलजिम की तरह लाचार था। मेरी वर्दी पे लगा हर स्टार बेकार था, और वो सिपाही होकर भी थानेदार थी, बिना स्टार के सुपरस्टार थी। लेकिन ना कोई शिकवा ना कोई गिला, क्योंकि इस बार डिपार्टमेंट की तरफ से बहादुरी का इनाम मुझे ही मिला। वो इस बात को लेकर मिला कि जो व्यक्ति पत्नी के साए में हर वक्त रह सकता है, उससे बहादुर भला देश में कौन हो सकता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सभी के जोश और खुशनुमा वातावरण को देखकर ऐसा लग रहा है कि बसंत की खुशहाली चारों तरफ सराबोर है। बसंत ऋतु के आगमन से पूरा वातावरण सुहावना हो जाता है, पेड़ों पे नए पत्ते आ जाते हैं और पूरी प्रकृति में नई ऊर्जा, नई चेतना का संचार होता है। ठीक उसी तरह जब हमारी मेहनत की कद्र और नई पहचान मिलती है तो हमारे अंदर भी एक नई ऊर्जा, नई चेतना का संचार होता है।
मानव मन की इसी विशेषता को समझते हुए आप सबकी कर्मठता और सफलता को सराहने के लिए हर साल इस अवार्ड फंक्शन का आयोजन किया जाता है। जैसा कि जेडीसी सर बता चुके हैं कि आज कुल 15 अवार्ड दिए जाने हैं, तो चलिए सबसे पहले बढ़ते हैं फर्स्ट कैटेगरी की तरफ। आज के इस अवार्ड फंक्शन की फर्स्ट कैटेगरी है फूड एंड एग्रो प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चर एंड प्लांटेशन प्रोडक्ट्स। इनसे पहले मैं अपने स्टेज पे बैठे अधिकारियों से गुजारिश करना चाहूँगा कि एक्सपोर्ट अवार्ड देने के लिए आगे आएं। और फर्स्ट कैटेगरी का अवार्ड सबसे बेहतर परफॉर्मेंस के लिए जाता है, वो यूनिट है मैसर्स गोकुल ओवरसीज। मैं गोकुल ओवरसीज के प्रोडक्शन मैनेजर श्री घनश्याम सिंह पटेल जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपना अवार्ड लेने स्टेज पे आएं। और मैं आज के मुख्य अतिथि श्री एस के मेहता सर से आग्रह करना चाहूँगा कि वो गोकुल ओवरसीज को अपने कर कमलों से अवार्ड देकर सम्मानित करें। लेडीज एंड जेंटलमैन, गोकुल ओवरसीज विभिन्न ग्रेड के कैस्टर ऑयल बनाते हैं। उन्होंने वर्ष 2006 में कासेज में उत्पादन शुरू किया। तब उनके पास मात्र 80 कर्मचारी थे, जो आज बढ़कर 250 से अधिक हो गए हैं। उनका वित्तीय वर्ष 19-20 में कुल एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस है 594.11 करोड़। एक बार फिर से जोरदार तालियां हो जाए गोकुल ओवरसीज के लिए। दूसरी कैटेगरी केमिकल्स एंड अलाइड प्रोडक्ट्स, जिसमें सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किया है मैसेस बेकारोस परफ्यूम्स एंड ब्यूटी प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड ने, जो कॉस्मेटिक्स एंड परफ्यूमरी प्रोडक्ट्स बनाते हैं और मुख्यतः सिंगापुर, यूएई, नीदरलैंड एंड रशिया में निर्यात करते हैं। उन्होंने वर्ष 1985 में कासेज के उत्पादन शुरू किया तथा उनका वर्ष 2019-20 में कुल एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस है 233.66 करोड़। मैं बेकारोस के एडमिन मैनेजर श्री विजय हेगड़े जी से निवेदन करूंगी कि वो एक्सपोर्ट अवार्ड देने स्टेज पर आएं। मैं हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर श्री प्रमोद वसावे जी से निवेदन करूंगी कि वे उन्हें सम्मानित करें। कॉन्ग्रेचुलेशन सर। आज के अवार्ड फंक्शन की तीसरी कैटेगरी है ड्रग्स, फार्मास्यूटिकल्स एंड अलाइड प्रोडक्ट्स, जिसमें सबसे बेहतर परफॉर्म किया है मैसर्स मिशन फार्मा लॉजिस्टिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने। मिशन फार्मा लॉजिस्टिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इज अ लीडिंग सप्लायर ऑफ जेनरिक फार्मास्यूटिकल्स, मेडिकल कंज्यूमेबल्स एंड हॉस्पिटल इक्विपमेंट्स एंड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ मेडिकल किट्स टू द पब्लिक इंस्टीट्यूशंस वर्ल्ड वाइड। उन्होंने वर्ष 2011 से कासेज में उत्पादन शुरू किया और पिछले वित्तीय वर्ष में उनका कुल एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस है 216.15 करोड़। मैं मिशन फार्मा के डायरेक्टर श्री सुदेश जिंगड़े जी से अनुरोध करना चाहूँगा कि वो स्टेज पे आएं और अपने डेवलपमेंट कमिश्नर सर डॉक्टर अमीर चंद्रा सर से रिक्वेस्ट करूँगा कि वे अपने कर कमलों से अवार्ड प्रदान करें। कॉन्ग्रेचुलेशन सर। चौथी कैटेगरी है प्लास्टिक प्रोडक्ट्स, जिसमें सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किया है मैसेस मदरसन सुमी सिस्टम लिमिटेड ने, जो वायरिंग हार्नेस कंपोनेंट्स बनाते हैं। उन्होंने वर्ष 2009 में कासेज में उत्पादन शुरू किया तथा उनका वर्ष 2019-20 में कुल एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस है 211.39 करोड़। Messrs. Motherson Sumi System is one of the largest manufacturer of wiring harness and commercial vehicles and rear view mirrors for passengers cars in the world, and India's largest manufacturer of automotive wiring harness and mirrors for passenger cars. It is also a leading supplier of plastic modules and components in Europe and India. मैं
उनके प्रतिनिधि श्री आलोक कुमार जी से निवेदन करती हूं कि वे स्टेज पे आके अपना अवार्ड लें। मैं हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर श्री टीवी रवि सर से निवेदन करती हूं कि उन्हें सम्मानित करें। बहुत बहुत अभिनंदन सर। आज के अवार्ड फंक्शन की 5वीं कैटेगरी है जनरल कैटेगरी ऑफ मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स, जिसमें सबसे बेहतर परफॉर्म किया है मैसर्स रॉयल पेट्रोकेम ने, जो लुब्रिकेंट्स व ग्रीस का उत्पादन करते हैं। उन्होंने वर्ष 2008 में कासेज में कार्य उत्पादन शुरू किया। तब उनके पास बहुत कम कर्मचारी थे, जो आज बढ़कर 300 से अधिक हो गए हैं, तथा उनका पिछले वर्ष 19-20 में कुल एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस है 187.05 करोड़ रुपीज़। मैं उनके डायरेक्टर श्री परमेश वेद जी से आग्रह करना चाहूँगा कि वो स्टेज पे आएँ, और मैं जेडीसी सर श्री सत्यदीप महापात्रा सर से आग्रह करना चाहूँगा कि वे अपने कर कमलों से अवार्ड प्रदान करें। जोरदार तालियां हो उनके स्वागत के लिए। बहुत बहुत बधाई हो सर। छठी कैटेगरी है यूज्ड क्लोथिंग, जिसमें सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किया है मैसेस राघवानी टेक्सटाइल प्राइवेट लिमिटेड ने। उन्होंने वर्ष 2000 में कासेज में कार्य शुरू किया। तब उनके पास मात्र 40 कर्मचारी थे, जो आज बढ़कर 900 हो गए हैं। बहुत बहुत तालियां। यूज क्लोथिंग और इंडस्ट्रियल वाइपिंग रैक्स के सबसे बड़े निर्यातक के रूप में कार्यरत हैं, तथा उनका वर्ष 19-20 में कुल एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस है 181.74 करोड़। मैं राघवानी टेक्सटाइल के उपस्थित प्रतिनिधि श्री अखिलेश भट्ट जी से निवेदन करूंगी कि वे स्टेज पर आकर अपना अवार्ड लें। मैं कासिया के प्रेसिडेंट श्री पारसमल जैन जी से निवेदन करूंगी कि उन्हें सम्मानित करें। बहुत बधाई हो सर। आज के अवार्ड फंक्शन की 7th कैटेगरी है इंजीनियरिंग एंड मेटलर्जिकल प्रोडक्ट्स। इस कैटेगरी में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस रहा है मैसर्स प्राज इंडस्ट्रीज का। प्राज इंडस्ट्रीज ने 2007 में कासेज में उत्पादन शुरू किया, और पिछले वित्तीय वर्ष 2019-20 में उनका कुल एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस 127.73 करोड़ रुपीज़ का रहा है। मैं प्राज इंडस्ट्रीज के एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट श्री हरेश जी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वो स्टेज पे आएँ, और श्री SK मेहता सर से आग्रह करना चाहूँगा कि वो अवार्ड प्रदान करें। कॉन्ग्रेचुलेशन सर। आठवीं कैटेगरी है सर्विस एंड ट्रेडिंग, जिसमें सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किया है मैसेस अवस्थी केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड ने। उन्होंने वर्ष 2013 में उत्पादन शुरू किया था। उनका वर्ष 2019-20 में कुल परफॉर्मेंस है 47.56 करोड़, जो इंडिया में लिक्विड सॉल्वेंट्स केमिकल्स के लार्जेस्ट एक्सपोर्टर हैं। मैसेस अवस्थी केमिकल्स के उपस्थित प्रतिनिधि श्री भरत कुमार सेठ जी से निवेदन करती हूं कि वे अपना अवार्ड लेने स्टेज पे आएँ। मैं गेस्ट ऑफ ऑनर श्री प्रमोद वसावे जी से निवेदन करती हूं कि कृपया उन्हें अवार्ड से नवाजें। कॉन्ग्रेचुलेसन सर। आज के फंक्शन की 9वीं कैटेगरी है इंट्राजोन सेल्स, जिसमें सबसे बेहतर परफॉर्म किया है मेसर्स मिलाक इंटरप्राइजेज ने, जो एडेसिव टेप्स, होलोग्राम एंड कोरुगेटेड बॉक्सेस बनाते हैं, तथा साथ में ट्रेडिंग, वेयरहाउसिंग और वॉल्टिंग एक्टिविटी का भी कार्य करते हैं। उन्होंने वर्ष 1999 में कासेज में उत्पादन शुरू किया, तथा उनका पिछले वर्ष कुल एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस रहा है 20.85 करोड़। मैं मिलाक इंटरप्राइजेज के पार्टनर श्री विवेक मिलाक जी से आग्रह करना चाहूँगा कि वो स्टेज पे आएँ और अपने
सर डॉक्टर अमीया चंद्र सर से आग्रह करना चाहूँगा कि वो अपने कर कमलों से अवार्ड प्रदान करें। कॉन्ग्रेचुलेसन सर। एक्सपोर्ट अवार्ड की 10वीं कैटेगरी टेक्सटाइल एंड टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स, जिसमें सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किया है मैसेज स्ट्रैंड्स टेक्सटाइल्स मिल्स प्राइवेट लिमिटेड ने, जो रेडीमेड गारमेंट्स बनाते हैं। उन्होंने वर्ष 2006 में कार्य शुरू किया तथा वर्ष 19-20 में कुल एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस है 9.39 करोड़। मैसेज स्ट्रैंड्स को 3 दशकों से विशेष रूप से होम टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग का अनुभव है। वे बेडशीट्स, पिलोस केसेस, कंफर्ट्स, क्विल्ट्स, ब्लैंकेट्स का उत्पादन करते हैं तथा यूएसए, कनाडा, यूरोप तथा यूके में निर्यात करते हैं। मैं उनके डायरेक्टर श्री प्रदीप जैन जी से निवेदन करती हूं कि वे अपना एक्सपोर्ट अवार्ड लेने स्टेज पर आएँ। मैं पुनः हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर श्री टीवी रवि सर से निवेदन करूंगी कि उन्हें अवार्ड से नवाजें। कॉन्ग्रेचुलेसन सर। पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी अवार्ड लिस्ट में शामिल किया गया है बेस्ट ओवरऑल परफॉर्मर अमंग प्राइवेट एसईजेड अंडर द जोनल डेवलपमेंट कमिश्नर गुजरात, एंड दिस अवार्ड गोज टू मेसर्स फामिज एसईजेड, जिसे जाइडस एसईजेड के नाम से भी जाना जाता है। देयर टोटल एक्सपोर्ट ड्यूरिंग द ईयर 2019 and 20 was 4,104 crores, with recording a growth of 921 crore as compared to preceding year. Apart from this, in support of Green SEZ movement by Zonal DC, Jaidus SEZ is providing electric buses, cycles and ambulance, and also planted more than 25,000 trees. Jaidus is also known as the Golden Pharma Corridor of Gujarat. Jaidus SEZ ने अपने यूनिट्स के लिए वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप किया है, जिसमें एसटीपी एंड ईटीपी प्लांट वाटर स्टोरेज फैसिलिटी, जीरो वेस्ट डिस्चार्ज दर्शनीय हैं। अभी 1 मार्च 2021 को ही जाइडस ने कृषि को इंडस्ट्री का दर्जा देने के लिए प्रधानमंत्री के पहल के अंतर्गत हाइड्रोपोनिक्स एंड एरोपोनिक्स R&D सेटअप किया है, जो अत्यंत प्रशंसनीय हैं। जाइडस इंफ्रास्ट्रक्चर के सीईओ श्री कैलाश बहुगुणा सर से आग्रह करना चाहूँगा कि वो अपना अवार्ड लेने स्टेज पे आएँ, और मैं श्री एस के मेहता सर से आग्रह करना चाहूँगा कि वे अपने कर कमलों से अवार्ड प्रदान करें। एक जोरदार तालियों से स्वागत करें जाइडस एसईजेड के सीईओ श्री कैलाश बहुगुणा सर का। बहुत बहुत बधाई हो सर। कॉन्ग्रेचुलेशन सर। करो जतन हो जाए यह, करो जतन हो जाए यह, सारा जग हैरान, इस तरह हो स्वच्छता चमके हिंदुस्तान। देश के लिए कुछ कर गुजरना देश पर बलिदान होने से कम नहीं है। अपने वतन, अपने चमन, अपनी मातृभूमि की सेवा करना एक बड़ी देशभक्ति है, एक बड़ी देशभक्ति से कम नहीं है। आप सभी ने अपने क्षेत्र को स्वच्छ रखने के लिए जिस तरह की प्रतिबद्धता दिखाई है वह अभिनंदनीय है। इसी विचार को मद्देनज़र रखते हुए एक विशेष कैटेगरी का अवार्ड दिया जा रहा है, जिसे पिछले 5 वर्षों से अवार्ड लिस्ट में शामिल किया गया है, जो है बेस्ट स्वच्छ यूनिट। इस कैटेगरी के लिए कई नॉमिनेशंस आए थे, जिनमें से 2 यूनिट को कमेटी द्वारा शॉर्टलिस्ट किया गया, जिसमें से एक है फार्मा यूनिट और एक है नॉन फार्मा यूनिट। कई पैरामीटर्स को ध्यान में रखकर 2 टियर सिलेक्शन के प्रोसेस के बाद नॉन फार्मा यूनिट में से सिलेक्ट हुए हैं। मेसर्स मदरसन सोमी सिस्टम लिमिटेड को बेस्ट स्वच्छ यूनिट का अवार्ड दिया जा रहा है। They promote 6S to maintain good housekeeping and hygiene within their organization, including the habit of periodic training
to all employees from beginning. मैं उनके उपस्थित प्रतिनिधि श्री आलोक कुमार जी से निवेदन करती हूँ कि वे अपना अवार्ड लेने स्टेज पर आएं। मैं पुनः हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर श्री प्रमोद वसावे जी से निवेदन करती हूँ कि वे उन्हें इस सम्मान से सम्मानित करें। कॉन्ग्रेचुलेशन सर। फार्मा यूनिट में से मेसेस गैलेंटिक फार्मा प्राइवेट लिमिटेड को कॉन्ग्रेचुलेशन सर। फार्मा यूनिट में से मेसेस गैलेंटिक प्राइवेट लिमिटेड को बेस्ट स्वच्छ यूनिट का अवार्ड दिया गया है। वे क्लीनलीनेस इज गॉडलीनेस में बिलीव करते हैं तथा पिछले 5 वर्षों से बेस्ट स्वच्छ यूनिट का अवार्ड जीतते आ रहे हैं, जिसके लिए वे बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। An important factor of Galantic Pharma is they maintain good housekeeping inside and outside the factory premises and take equal care of maintaining good personal hygiene of their employees. To maintain the standard of housekeeping, they provide training to their employees. They also give washed uniform daily to their employees to maintain their personal hygiene by providing laundry in-house. मैं बहुत बहुत तालियों से उनका अभिवादन करें। मैं गैलेंटिक फार्मा के उपस्थित मैडम से निवेदन करती हूं कि वे कृपया स्टेज पर आकर अपना अवार्ड लें। मैं हमारे विकास आयुक्त डॉक्टर राम्या चंद्रा जी से निवेदन करती हूं कि वे उन्हें इस सम्मान से निवाजें। कॉन्ग्रेचुलेसन सर एंड मैडम। जंगल जंगल खंजर चल रहा, रूठ रही है हरियाली, दरकार है ऐसी फजाओं की जो ले आए फिर हरियाली। तो इस हरियाली को मेंटेन रखने के लिए एक नया अवार्ड बेस्ट ग्रीन यूनिट अवार्ड कासेज के जिस यूनिट को दिया जा रहा है उसका नाम है मैसर्स यूएस क्लोथिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। अपने यूनिट को ग्रीन रखने के लिए इन्होंने कई कदम उठाए हैं। हरियाली के उद्देश्य से उन्होंने बहुतायत में फल फूल नीम और जड़ी बूटियां उगाई है। उन्होंने हर साल अपने कारखानों ग्रीनफील्ड एरिया और अपने होम टाउन में 50-60 पेड़ लगाने की प्रतिबद्धता जताई है, जिसके लिए वे बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। बहुत बहुत तालियों से स्वागत करें यूएस क्लोथिंग्स के डायरेक्टर श्री सद्दाम तालू जी का। उनसे मैं आग्रह करना चाहूँगा कि वो स्टेज पे आएँ और अपना अवार्ड ग्रहण करें। मैं अपने गेस्ट ऑफ ऑनर सर श्री टीवी रवि सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अवार्ड देकर इनको सम्मानित करें। कॉन्ग्रेचुलेशन सर। जी हाँ, एक और विशेष अवार्ड जिसे इस वर्ष से अवार्ड लिस्ट में शामिल किया गया है वो है बेस्ट यूनिट अवार्ड फॉर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। इस कैटेगरी को भी कमेटी द्वारा शॉर्टलिस्ट किया गया जो जाता है मेसर्स कैनम इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड को। उन्होंने वर्ष 2001 में कासेज में उत्पादन शुरू किया था। तब उनके पास लगभग 100 कर्मचारी ही थे, जो बढ़कर आज 1500 से अधिक हो गए हैं, जिसमें से सिर्फ 1200 सिर्फ नहीं बोलूँगी, बहुत सारी बोलूँगी, 1200 केवल महिलाएं कार्य करती हैं। बहुत बहुत तालियों से उनका स्वागत कीजिए। मैं कैनम के उपस्थित प्रतिनिधि श्री हरि गोपालन जी से निवेदन करूँगी कि वे स्टेज पे आके अपना अवार्ड लें। मैं हमारे जेडीसी सर से पुनः निवेदन करूँगी कि उन्हें इस अवार्ड से नवाजें। कैनम इंटरनेशनल के लिए 2 लाइनें कहना चाहूँगा। जिंदगी तब बेहतर होती है जब हम खुश होते हैं। जिंदगी तब बेहतर होती है जब हम खुश होते हैं, लेकिन जिंदगी तब बेहतरीन होती है जब हमारी वजह से कोई खुश होता है। तो इन्होंने जो एम्प्लॉयमेंट का रिकॉर्ड दिखाया है और ख़ास करके गरीब महिलाओं की स्थिति में जो सुधार हुआ है, उनके लिए
एक जोरदार ताली हो जाए। थैंक यू सर। मैं आप सभी से आग्रह करती हूँ कि कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। अब मैं विकास आयुक्त डॉक्टर रामेचंद्र जी से निवेदन करती हूँ कि वे हमारे मुख्य अतिथि विशेष श्री संजय कुमार मेहता, चेयरमैन कांडला पोर्ट दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट को स्मृति चिन्ह देकर उनका सत्कार करें। थैंक यू सर। अब मैं संयुक्त विकास आयुक्त श्री महापात्र जी से निवेदन करती हूँ कि वे हमारे सम्मानीय अतिथि श्री प्रमोद वसावे जी को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करें। थैंक यू सर। मैं कासिया के प्रेसिडेंट श्री पारसमल जैन जी से निवेदन करती हूँ कि वे हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर श्री टीवी रवि सर को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करें। थैंक यू सर। मैं सीमा शुल्क उपायुक्त सर अरुण कुमार सर से निवेदन करती हूँ कि वे श्री सुशांत कुमार एडिशनल कमिश्नर कस्टम मुंद्रा का इस स्मृति चिन्ह से स्वागत करें। थैंक यू सर। मैं उप विकास आयुक्त श्री दीपक जाला जी से निवेदन करती हूँ कि वे श्री प्रभात के रामेश्वरम एडिशनल डायरेक्टर DRI का स्वागत करें। मैं पुनः DC कस्टम सर से निवेदन करती हूँ कि वे श्री मिलन कुमार ज्वाइंट कमिश्नर GST गांधीधाम का स्मृति चिन्ह से सत्कार करें। मैं पुनः उप विकास आयुक्त श्री दीपक जाला जी से निवेदन करती हूँ कि वे श्री देव प्रकाश भामवंत ज्वाइंट कमिश्नर GST गांधीधाम का स्वागत करें। मैं पुनः DC कस्टम श्री अरुण कुमार जी से निवेदन करती हूँ कि वे श्री अजय कोठारी जो कि कासिया के फाउंडर हैं उनका स्मृति चिन्ह से स्वागत करें। थैंक यू सर। मैं उप विकास आयुक्त झाला सर से फिर से निवेदन करती हूँ कि वे श्री AK मौर्य AC कांडला कस्टम का स्वागत करें। थैंक यू सर। मैं DC कस्टम अरुण कुमार सर से पुनः निवेदन करती हूँ कि वे श्री नीरव शाह GM
अदानी पोर्ट एंड एसईजेड लिमिटेड का सत्कार करें। थैंक यू सर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, समग्र कच्छ के विकास में दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कच्छ को एक मजबूत आर्थिक पहचान व स्थान दिलाते हुए दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट ने देश के मेजर पोर्ट्स में अपना अग्रिम स्थान बनाए रखा है। यह हमारा सौभाग्य है कि दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट के चेयरमैन श्री संजय कुमार मेहता जी मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच उपस्थित हैं। चंद पंक्तियां हमारे विशेष अतिथि के लिए प्रस्तुत है। सुनकर कर दें अनसुना ऐसी इनकी आवाज़ नहीं, सुनकर कर दें अनसुना ऐसी इनकी आवाज़ नहीं, मिलकर भूल जाए कोई ऐसे इनके अल्फाज नहीं, किसी महफिल में छुप जाएं ऐसे इनके अंदाज नहीं, सूरज से दमकते हैं ये किसी परिचय के मोहताज नहीं। फिर भी मैं आप सभी को बता दूं कि श्री मेहता सर गुजरात कैडर के 1990 बैच के IFS ऑफिसर हैं, जो वर्तमान में दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट कांडला के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं। इनके पहले वह मुख्य वन संरक्षक जूनागढ़ में कार्यरत थे। वह नालंदा बिहार के निवासी हैं। एक लंबे और विशिष्ट कैरियर में श्री मेहता सर ने गुजरात सरकार में कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट कांडला के अध्यक्ष के रूप में अपने वर्तमान कार्यकाल में उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड इंक्रीज इन कार्गो वॉल्यूम और दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट में निवेश पर जोर दिया है। उनके सक्षम नेतृत्व में चालू वित्त वर्ष में दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट को फेवरेट डेस्टिनेशन फॉर इन्वेस्टमेंट के रूप में प्रेजेंट किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप 20 अलग अलग देशों के निवेशकों के साथ 77,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न योजनाओं के लिए 40 MOUs पर सिग्नेचर किए गए हैं। मैं सर से आग्रह करना चाहूँगा कि आप हम सभी को अपने आशीर्वचनों से लाभान्वित करें। सर। Good afternoon to all the dignitaries, ladies and gentlemen. I am honored to join you today to celebrate the Foundation Day of KASEZ and the award function that has commemorated different exporters and stakeholders who are conducting their economic activities through KASEZ. I would like to thank Dr. Amiya Chandra, Zonal Commissioner, KASEZ, and KASEZ Industry Association for inviting me as the chief guest for this occasion. I would also like to acknowledge and thank the other guests of honor, Sri Pramod Vasave and Sri T.V. Ravi, for their gracious presence on this occasion. अमिया चंद्रा साहब ने काफ़ी बातें की ग्रीन कासेज के बारे में और कैसे उन्होंने ग्रीन किया कासेज को। उन्होंने मुझे समय दिया है, मैं भी थोड़ा बोलूँगा। मैरीटाइम इंडिया विजन, एक विज़न तैयार किया गया है पोर्ट सेक्टर की तरफ से। अभी मैरीटाइम इंडिया समिट हुआ था 2 मार्च से 4 मार्च के बीच में। मैरीटाइम इंडिया समिट का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री श्री ने किया था। ये वर्चुअल मोड पर पूरा का पूरा समिट किया गया था, जिसमें 40 से ज़्यादा कंट्रीज़ और 10 से ज़्यादा स्टेट्स ने भाग लिया था। उस मैरीटाइम इंडिया समिट में एक बड़ा मुख्य काम ये हुआ था कि मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 जो पोर्ट सेक्टर में तैयार हुआ है, उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने किया उस दिन। मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 अगले 10 साल में पोर्ट सेक्टर में क्या काम करना है, किस तरह आगे बढ़ना है, उसके लिए था। कई सारी कमिटीज़, कई सारे टीम बने थे। एक टीम बनी थी ग्रीन एंड सस्टेनेबल मैरीटाइम सेक्टर के लिए, और दीनदयाल पोर्ट के चेयरमैन तरीके
उस कमेटी को मैं देख रहा था, उस कमेटी को मैं चेयर कर रहा था ग्रीन एंड सस्टेनेबल पोर्ट सेक्टर के लिए। जो ग्रीन की बात कर रहे हैं कासेज के लिए, हमने अगले 10 साल में पोर्ट सेक्टर में, चूँकि पोर्ट सेक्टर और इकोनॉमिक जोन्स बिल्कुल स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स एक दूसरे के पूरक हैं कह सकते हैं, तो अगले 10 साल में ग्रीन एंड सस्टेनेबल मैरीटाइम सेक्टर के लिए क्या करना चाहिए उसका एक विज़न हमने तैयार किया। उस विज़न को लेके हम इंटरनेशनल स्पीकर्स के पास गए, हम ओस्लो पोर्ट के डायरेक्टर से हमारी बात हुई, सिंगापुर पोर्ट से बात हुई, रॉटरडम से बात हुई, नॉर्वे के दूसरे पोर्ट से बात हुई। उनका जो विज़न है उसके सामने हमारा विज़न कैसा है। एक तो हमारा जो विज़न है, हमारे पोर्ट्स उनके पोर्ट्स के कंपैरिजन में, एटलीस्ट नॉर्वे वगैरह के कंपैरिजन में हमारे पोर्ट्स काफ़ी बड़े हैं, लेकिन जहाँ तक ग्रीन पोर्ट्स की बात है, ग्रीन शिपिंग की बात है, वो हमसे काफ़ी आगे हैं। हमने उनको बताया कि हमने अपना विज़न ये लिया है अगले 10 सालों के लिए। उन्होंने बताया हमें कि आपका स्टेप इज़ द स्टेप इन द राइट डायरेक्शन, यू आर स्टार्टिंग वेल। हमने ध्यान दिया है रिन्यूएबल एनर्जी पर। हमने KPI सेट किया है कि हमारे पास रिन्यूएबल एनर्जी जो है अगले 10 सालों में मोर देन 60% हो जाना चाहिए पूरे पोर्ट सेक्टर में। फिर फ्रेश वाटर हमारा कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है, मिनिमम 50% फ्रेश वाटर का कंजम्पशन हमको कम करना चाहिए। शोर टू शिप इलेक्ट्रिसिटी हमको प्रोवाइड करनी चाहिए। हमारे जितने भी मैकेनाइज सिस्टम हैं सारे इलेक्ट्रिकल होने चाहिए। हमें ग्रीन कंप्लीट ग्रीन शिपिंग की तरफ जाना चाहिए और जीरो इमिशन मोड पर जाना चाहिए शिपिंग के लिए, LNG बंकरिंग के लिए जाना चाहिए। ये सारी चीज़ें हमने इन्विसेज की है अगले 10 सालों में करने के लिए। आपको एक इम्पॉर्टेंट बात मैं बताना चाहता हूँ। हमारा पोर्ट जो है दीनदयाल पोर्ट, आप किसी को पता नहीं होगा क्योंकि हमने कभी उसको हाईलाइट किया नहीं है। अभी इस समिट के दरमियान हमने हाईलाइट किया। हमारा पोर्ट आप कह सकते हैं कि एक ग्रीन पोर्ट है। ग्रीन पोर्ट इसलिए है कि हम विंड एनर्जी 20 मेगावाट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। हमारा प्रोडक्शन अल्टरनेट एनर्जी में ग्रीन एनर्जी में, विंड एनर्जी में 20 मेगावाट है। 20 मेगावाट के सामने हमारा कंजम्पशन सिर्फ 10 मेगावाट है। हम 10 मेगावाट एडिशनल ग्रीन एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं और वो हम बेच रहे हैं। जो हमारा 10 मेगावाट का कंजम्पशन है ग्रीन एनर्जी का, उस 10 मेगावाट में जो हमारा ग्रीन एनर्जी 7.5 मेगावाट प्रोड्यूस हो रहा है, हम उसको यूज कर रहे हैं। 2.5 मेगावाट हमको पश्चिम गुजरात बीज कंपनी से लेना पड़ रहा है, क्योंकि ये स्टेटूटरी रिक्वायरमेंट है। स्टेटूटरी रिक्वायरमेंट के तरीके हमको कम से कम उनसे 2.5 मेगावाट लेना है। तो बाकी के 12.5 मेगावाट हमारी जो ग्रीन एनर्जी है, वो ग्रीन एनर्जी हम दूसरे स्टेक होल्डर्स को बेच रहे हैं। इफ़को को दे रहे हैं, दूसरी कंपनीज को दे रहे हैं। तो दैट वे हम कहने जाएँ हमारा पोर्ट ग्रीन पोर्ट है। एफॉरेस्टेशन की बात की गई है। हम भी पोर्ट सेक्टर में रहते हुए कोशिश कर रहे हैं कि एफॉरेस्टेशन को, ग्रीनरी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जाए। लास्ट 2 साल से पोर्ट एरिया को ग्रीन करने के लिए काफ़ी एफर्ट लिया गया है। पोर्ट के मीडियंस को, कोनोकार्पस एक स्पीसीज है, कोनोकार्पस एक स्पीसीज है। जैसा आप बता रहे थे इंग्लिश बावड़ जिसको बोल रहे थे, वो गांडा बावड़ है। गांडा बावड़ यहाँ कच्छ में यत्र तत्र सर्वत्र सब जगह गांडा बावड़ ही है। कभी बन्नी का एरिया बहुत अच्छा ग्रासलैंड हुआ करता था, वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट ग्रासलैंड हुआ करता था बन्नी। पानी की कमी के कारण, सरस्वती नदी का दिशा बदल जाने के कारण वहाँ अभी पानी नहीं आता है। वहाँ पूरा का पूरा उस गांडा बावड़, जिसको इंग्लिश बावड़ कह रहे थे, उसका पूरा राज हो गया है। हमारे यहाँ भी पोर्ट के एरिया में कुछ भी उगा पाना इस नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। जैसा समझ रहे हैं, आपकी ज़मीन थोड़ी अच्छी भी है, हमारी ज़मीन तो और बिल्कुल श्लस है, कुछ नहीं है वहाँ। हमने आइडेंटिफाई किया है कोनोकार्पस को, और कोनोकार्पस हम लगा रहे हैं। कोनोकार्पस अच्छा आ रहा है, और इस साल अगर कोरोना नहीं होता तो इसी साल हम ऑलमोस्ट पूरे पोर्ट को भर देते कोनोकार्पस से। इस साल बारिश में आयोजन है कि हम उसको कोनोकार्पस से अपने पोर्ट को पूरा भर देंगे। ऑलरेडी मीडियंस पर काफ़ी कुछ आ गया है और काफ़ी अच्छा आया हुआ है।
स्पेशल इकोनॉमिक जोन जैसा बताया सारे लोगों ने, ये पहला ही स्पेशल इकोनॉमिक जोन है जो पूरी कंट्री में आया था। उस स्पेशल इकोनॉमिक जोन में भी एक इम्पॉर्टेंट जो मुझे लगा कि ये 66-67 में यहाँ से सिर्फ 7 करोड़ का एक्सपोर्ट होता था जब शुरू हुआ था ये। आज वो फिगर 6000 करोड़ से ऊपर है। आई थिंक इसके लिए मैं अमीय चंद्रा जी को, उनकी टीम को खूब बधाई देता हूँ, और इनका SEZ इसी तरह से तरक्की करता रहे, आगे बढ़ता रहे। इनके सफल नेतृत्व में मैं यही शुभकामनाएं इनको देता हूँ। थोड़ा मैं पोर्ट के बारे में और बता दूँ क्योंकि आप कांडला में हैं, गांधीधाम में हैं। पोर्ट यहाँ के लिए, कांडला पोर्ट, दीनदयाल पोर्ट यहाँ के लिए लाइफ लाइन की तरह है। हमने काफ़ी कोशिश की है अभी उस पोर्ट को अच्छा करने के लिए। आप अगर अभी पोर्ट पर जाएं तो आप देखेंगे कि हर एक तरफ कुछ न कुछ पोर्ट के अंदर डेवलपमेंट का काम हो रहा है। हम नए रोड बना रहे हैं, हम नए पार्किंग स्पेसेस बना रहे हैं, बैकअप एरिया नए तैयार कर रहे हैं। लाइटिंग, जो काफ़ी सालों से लाइटिंग की परेशानी थी, हमने पोर्ट की लाइटिंग बहुत अच्छा कर दिया है। हमने एक मास्टर प्लान तैयार किया है, 3 साल का मास्टर प्लान है। लास्ट ईयर से उसको हमने उपयोग में लाना शुरू किया है। उस मास्टर प्लान में हमारा विज़न है कि पोर्ट को इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट मेजर पोर्ट्स में वन ऑफ द बेस्ट मेजर पोर्ट्स तरीके इसको हम प्रस्तुत कर सकें। आप सारे क्लाइंट्स हैं पोर्ट के, आपको जान के ये भी खुशी होगी कि अभी मैरीटाइम इंडिया समिट में जो मैरीटाइम इंडिया विजन हुआ है, उसमें 3 पोर्ट्स को मेगा पोर्ट्स तरीके आइडेंटिफाई किया गया है। उन 3 मेगा पोर्ट्स में दीनदयाल पोर्ट भी एक है। हमारे किसी भी पोर्ट की कैपेसिटी, जितने भी मेजर पोर्ट्स हैं, 12 मेजर पोर्ट में किसी भी पोर्ट की कैपेसिटी 300 मिलियन मेट्रिक टन से ऊपर नहीं है। जबकि हम बाहर के पोर्ट्स की बात करने जाएं, रॉटरडैम की बात करने जाएं, सिंगापुर की बात करने जाएं, तो उनकी कैपेसिटी 500 मिलियन मेट्रिक टन, 600 मिलियन मेट्रिक टन है। हमारे लोगों ने हमारे मिनिस्ट्री ने डिसाइड किया कि कम से कम 3 पोर्ट हमारे पास ऐसे होने चाहिए जिसकी कैपेसिटी 300 मिलियन मेट्रिक टन से ज़्यादा होनी चाहिए। उसमें एक पोर्ट हमारा आइडेंटिफाई किया हुआ है। हमारी कैपेसिटी अभी 265 मिलियन मेट्रिक टन है, और अगले 10 साल में, 10 साल से पहले ही, 10 साल लंबा समय है, 10 साल से पहले ही हम कम से कम 338 मिलियन मेट्रिक टन अपनी कैपेसिटी कर लेंगे। काफ़ी सारे कुछ नए डेवलपमेंट्स के लिए हम जा रहे हैं। 6 नई ऑयल जेट्टीज़, कभी सोचा नहीं था कि यहाँ 6 नई ऑयल जेट्टी हम बनाएंगे। हम 6 नई ऑयल जेट्टी लेके आ रहे हैं। एक कंटेनर टर्मिनल है, टूना टेकरा का जो एरिया है, टूना टेकरा को हम बिल्कुल नए पोर्ट की तरह डेवलप करना चाह रहे हैं। कारण ये है कि वहाँ का ड्राफ्ट अच्छा है, तो एक नया कंटेनर टर्मिनल का प्रपोजल है। वहीं एक मल्टीपर्पज़ कार्गो टर्मिनल का प्रपोजल है, वो प्रपोजल भी हम लेके आ रहे हैं। उसमें हम आगे भी बढ़ चुके हैं। क्योंकि ये सारे प्रोजेक्ट हैं, ये 1000 करोड़ से ज़्यादा बड़े हैं, इसको कैबिनेट के अप्रूवल की ज़रूरत होगी। तो हमने ऑलरेडी प्रपोजल तैयार करके, बोर्ड से अप्रूव करके ऑलरेडी मिनिस्ट्री में भेज दिया है। हम एक स्टेप आगे जा चुके हैं उसमें। उसके अलावा अभी मैरीटाइम इंडिया समिट में हमें MOUs साइन करने थे, मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग साइन करना था। बिजनेस को इनवाइट करना था कि आप आइए, देखिए पोर्ट के पास इतनी ज़मीन है, पोर्ट में ये फैसिलिटीज़ है, आप आइए और यहाँ पोर्ट में इन्वेस्ट कीजिए। उसके लिए गुजरात गवर्नमेंट के साथ भी, GMB के साथ भी हमने सामंजस्य किया था, गुजरात सरकार के साथ भी सामंजस्य किया था। एक बड़ी मीटिंग गुजरात के GMB के साथ, मैरीटाइम सेक्टर के साथ, अपॉर्चुनिटीज़ इन गुजरात मैरीटाइम सेक्टर, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन गुजरात मैरीटाइम सेक्टर, वो भी हमने आयोजित किया था। आपको बताते हुए मुझे खुशी होती है, तकरीबन 81,000 करोड़ का MOU हमने साइन किया है। ये पोर्ट सेक्टर में, पूरे पोर्ट सेक्टर का अभी तक का हाईएस्ट फिगर है। अभी तक इतना कभी इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट यहाँ नहीं हुआ था। ये जब हमारी गुजरात
गुजरात का जो इन्वेस्टमेंट समिट हो रहा था, गुजरात के इन्वेस्टमेंट समिट में चीफ मिनिस्टर के ACS हैं, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी मनोज दास जी, उन्होंने अपना प्रेजेंटेशन दिया। उन्होंने बताया कि ये जो पीरियड है, कोरोना का पीरियड है, कोरोना के पीरियड में बाकी स्टेट्स में इन्वेस्टमेंट के फिगर नीचे जा रहे हैं, गुजरात में इन्वेस्टमेंट का फिगर 500% से ज़्यादा बढ़ा है। तो उनका कहना था कि गुजरात में इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही अच्छा क्लाइमेट है, इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही अपॉर्चुनिटीज़ है और इन्वेस्टमेंट का इकोसिस्टम है बिल्कुल सॉलिड है। इसके कारण दूसरे स्टेट में इन्वेस्टमेंट नहीं भी आते हों, हमारे स्टेट में इन्वेस्टमेंट आ रहा है। 80,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट हमारे पास आ रहा है और तकरीबन उतना ही इन्वेस्टमेंट GMB के पास आ रहा है। उन्होंने वही प्रेजेंट किया सारे लोगों के सामने कि GMB और दीनदयाल पोर्ट मिल के ऑलमोस्ट 1,60,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं। उनकी जो बात थी इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट की, इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट मुझे भी लग रहा है कि सचमुच मुझे शुरू में ऐसा लगा नहीं था कि इतने लोग इंटरेस्ट लेंगे और इतने लोग आएंगे हमारे पास इन्वेस्टमेंट के लिए, MOU के लिए। बाद में ये परिस्थिति हो गई कि हमें रोकना पड़ा कि अभी बहुत हो गया है, अब हम MOU साइन नहीं करेंगे, सो इट्स टू मच। बाद में हमने अपने फाइनल फिगर मिनिस्ट्री को, सारे लोगों को दे दिए, तो उसके बाद भी लोग आके हमारे पास बैठे रहे कि नहीं, हमने JNPT में ये साइन किया है MOU, सिमिलर MOU आपके साथ साइन करना चाहते हैं, हमने कोलकाता पोर्ट के साथ ये MOU साइन किया है, हम आपके साथ साइन करना चाहते हैं। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये इन्वेस्टमेंट का इतना इंटरेस्ट है, लोगों को इंटरेस्ट इसलिए भी हो रहा है कि उनको अभी पोर्ट प्रशासन में उनको भरोसा है कि पोर्ट प्रशासन अभी ऐसी स्थिति में है, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर के काम है, दूसरे काम है, पोर्ट प्रशासन बढ़िया से ढंग से कर रहा है और जो भी काम होगा वो पोर्ट की बेहतरी के लिए होगा। इसलिए लोग सामने से आ रहे हैं और हमें एक्चुअली जो फिगर है, ये फिगर भी हमारा कंजर्वेटिव फिगर है ये फिगर और ज़्यादा होता। हमने लोगों के इन्वेस्टमेंट एस्टिमेट्स को कम किया कि आपका इन्वेस्टमेंट इतना नहीं हो सकता है, उसको कर्टेल करो, कम करो। तो इतना अच्छा वातावरण है, इतनी अच्छी सुविधाएं हैं, मैं चाहता हूं कि आप सब इस वातावरण का लाभ लें, आप सब ग्रो करें, आप सब इस ग्रोथ, गुजरात के ग्रोथ स्टोरी में, कच्छ के ग्रोथ स्टोरी में आप सब सहभागी बने। कच्छ के लिए भी बड़ी महत्वपूर्ण बात है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि इतना अच्छा इन्वेस्टमेंट यहाँ आने की संभावना हुई है। हम लोगों के सामने प्रोजेक्ट कर सके कि हमारे पास लैंड पार्सल है, इम्पॉर्टेंट और अच्छा लैंड पार्सल है, आप आइए, देखिए इस लैंड पार्सल में और इस पोर्ट में इन्वेस्ट कीजिए। SEZ की तरक्की की बात तो मैंने की, SEZ ने काफ़ी तरक्की की है और SEZ ऐसे ही तरक्की करता रहे। यहाँ के जितने भी SEZ हैं, उस SEZ में सबसे बड़ा SEZ कांडला का SEZ है। ऑलमोस्ट मोर देन 30% एम्प्लॉयमेंट भी यहीं से, इसी SEZ से जनरेट हो रहा है। काफ़ी सारे इनोवेटिव वर्क्स इन्होंने किए हैं। मैं तो अभी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का अगर कोई समिट होगा, कोई मीट होगा, मैं उसमें चंद्रा साहब को इनवाइट करना चाहूँगा कि बताएं, नेचुरली वो बताएं कि कांडला SEZ की ये सक्सेस स्टोरी है। जहाँ कुछ नहीं होता था, वहाँ इन्होंने मियावाकी करके छोटे से एरिया में 10 लाख प्लांट लगाने का जो पराक्रम किया है, जो उन्होंने बीड़ा उठाया है, वो अपने आप में बहुत बहुत सराहनीय है। खास करके कच्छ जैसे विस्तार में, जहाँ कुछ भी नहीं होता है, जहाँ कुछ भी उगाना मुश्किल है, मैं ये बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ, उस एरिया में इन्होंने इतनी बड़ी हिम्मत की है, रियली काबिले दाद है। और आपको चंद्रा जी, आपकी टीम को खूब खूब बधाई। SEZ के सारे लोग जो हैं, आप सारे लोगों को खूब शुभकामनाएं। आपका SEZ तरक्की करे, आपका बिजनेस तरक्की करे, आप हमारे पोर्ट के साथ बिजनेस कीजिए, हमारा पोर्ट भी तरक्की करे थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू सर।
जैसा कि हमारे विकास आयुक्त सर ने बताया कि कल महिला दिवस है। महिला दिवस के इस अवसर पे मैं एक छोटी सी कविता सुनाना चाहूँगा जिसका शीर्षक है बेटी की कीमत। उसे तन्हा सिसकता छोड़ जब आया मेरा भाई, उसे तन्हा सिसकता छोड़ जब आया मेरा भाई, मैं बेटी हूँ मैं माँ को अपने साथ ले आई। वो बूढ़ी हो गई तो उसे अब बोझ लगती है, वो बूढ़ी हो गई तो उसे अब बोझ लगती है। जवानी अपने बच्चों के लिए जिसने थी झुलसाई, है बस अपने ही बीवी और बच्चों से उसे मतलब, है बस अपने ही बीवी और बच्चों से उसे मतलब। उसी को भूल बैठा जो दुनिया में उसे लाई। बड़ी गाड़ी बड़ा बंगला बड़ा ओहदा सभी कुछ है, बड़ी गाड़ी बड़ा बंगला बड़ा ओहदा सभी कुछ है, मगर माँ बाप जब मांगे नहीं जेबों में एक पाई। वो कुत्ता पाल सकता है, वो कुत्ता पाल सकता है, मगर माँ बोझ लगती है। उसे कुत्ते ने क्या कुछ भी वफादारी ना सिखलाई। जो जैसा बीज बोता है वो फल वैसा ही पाता है। बुढ़ापा तुझ पे भी आएगा क्यों भूला ये सच्चाई। और तेरा बेटा जो देखेगा वो भी तो वही सीखेगा, और तेरा बेटा जो देखेगा वो भी तो वही सीखेगा। तू अपने वास्ते हाथों से अपने खोद न खाई। जो वृद्धाश्रम में बेटा छोड़कर तुझे चला जाए, अगर जिंदा रही तो पूछेगी तुझसे तेरी ये माँ जाई। बता बता किसके लिए थी तूने दौलत कमाई, मगर जो असल दौलत फर्ज की थी वो तो तूने बिसराई। खुलेगा जब खुदा के बैंक में खाता तेरा एक दिन, खुलेगा जब खुदा के बैंक में खाता तेरा एक दिन। तेरे सर पे बड़ा कर्जा चढ़ा होगा मेरे भाई, और जो मन्नत मांगते थे बस हमें बेटा हो हमें बेटा हो, और जो मन्नत मांगते थे बस हमें बेटा हो, उन्हें बेटी की कीमत अब बुढ़ापे में समझ आई। हैप्पी वुमेंस डे इन एडवांस। इसके लिए 2 लाइन कि हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजारों दीपक चाहिए एक आरती सजाने के लिए, पर एक स्त्री अकेली ही काफ़ी है पूरे घर को स्वर्ग बनाने के लिए। अब मैं कासेज इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के प्रेसिडेंट श्री पारस जैन जी से आग्रह करना चाहूँगा कि वो धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करें। नमस्कार आदरणीय मेहता साहब, वसावा साहब, रवि सर और हमारे लाडले अमिया चंद्र जी, महापात्र जी, आज के सभी अवार्डीज, मेरे साथी, मीडिया के भाइयों और उपस्थित सभी भाइयों और बहनों, आज के इस खास मौके पर सबसे पहले मैं मेरे अवार्डी साथी को सबको अभिनंदन करना चाहता हूं कि उन्होंने जो प्रगति की, जिन्होंने कंडला एसईजेड का नाम रोशन किया, उनके लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और फ्यूचर में भी अपनी इस काबिलियत को और आगे बढ़ाते रहें, ऐसी शुभकामनाएं देता हूं। ऐसे तो हमारे अमिया चंद्र जी के लिए बोलने की बहुत ज़रूरत नहीं है क्योंकि बहुत कुछ सब लोगों ने सुन भी लिया है काफ़ी, लेकिन मैं इतना ही कहूँगा कि ये नए नए आवाम ऐसे लाते हैं जो पहले कभी हुए नहीं थे। तो अमिया चंद्र जी ने कंडला एसईजेड में काफ़ी सारी रौनक ला दी है, पर मेरे जो मुख्य बात मेरे को करनी है वो तो मेरे रवि सर ने पहले ही बता दी, जो मैं करने वाला था। मेरी छोटी सी बात यही है कि जैसे आज अमिया चंद्र जी ने बताया कि मैं इस कंडला एसईजेड को ब्रांड एंकर बनाना चाहता हूँ। ब्रांड एंकर बनाना है सर, तो हमारी रिक्वेस्ट को सुनना पड़ेगा आपको, और उसकी शुरुआत भी आपको आज से ही करनी होगी, अभी से करनी होगी, क्योंकि हम तो आपको इतना सा ही बताते कि इस ब्रांड एंकरिंग के लिए जैसा आप लोगों ने सोचा है, अभी रवि सर ने भी बताया, आपने भी बताया
कि इसको ब्रांड एंकर बनाना है तो ज़मीन का, लैंड का सबसे बड़ा इश्यू आता है। और कंडला SEZ की बात करते हैं, हमें दर्द होता है कि इस ज़मीन को 1300 एकड़ ज़मीन को KPT ने मुफ्त में दी है, 1 रुपये टोकन में। आज आप 250 रुपये स्क्वायर मीटर ईयरली रेंट ले रहे हैं। दूसरा, पूरे विश्व में आप किसी भी जगह चले जाएं, कहीं भी आपको एस्केलेशन का जो पैरामीटर है वो 3 से 5% होता है, यहाँ हमारे से 10% लिया जाता है। हमारी रिक्वेस्ट ये है आपसे कि अगर आप इस चीज़ को नहीं बढ़ाएंगे तो 10 साल के अंदर कोई बड़ा कैपिटल इन्वेस्टमेंट कंडला SEZ में नहीं आया है, मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। इसका नहीं आने का रीज़न एक ही है कि जो भी इन्वेस्टर आता है वो पहले ये सोचता है कि मैं यहाँ 5 साल रेंट पे करूँगा, इतने में तो मेरे को ज़मीन बाहर मिल जाएगी और वो मेरी खुद की ज़मीन होगी, फ्री होल्ड होगी। तो सर, मेरे रिक्वेस्ट आपसे ये है, हमने आगे भी मिनिस्ट्री में बहुत कुछ लिखा है 1 साल से कि हमारी आप इस चीज़ को सुने, पर अब मेरे को लगता है आज रवि साहब भी यहीं बैठे हैं, अमिया चंद्र जी ने भी कोशिश की होगी, पर मैं बोल रहा हूँ कि आप जब तक इस चीज़ को नहीं लेंगे अपने पेपर पे और जब तक कार्यान्वित नहीं करेंगे जोन में, जब तक बाहर की इंडस्ट्री नहीं आएगी। कैपिटल इन्वेस्टमेंट लाना है, आपको ज़मीन में फ्री करना पड़ेगा, ज़मीन का आधा भाव करना पड़ेगा, तो ही ये ज़मीन, तभी आपका कंडला SEZ चलेगा। मेरी निवेदन है आपसे, आप इस और आगे बढ़ें और सारे जोन के जितने भी मेरे यहाँ बैठे भाई हैं उन सब की भी यही राय है, मैं उनके ब्याह पे ही बोल रहा हूँ आपको, तो आप इस तरफ ध्यान देंगे। आज के इस कार्यक्रम में मुझे वोट ऑफ थैंक्स के लिए बुलाया है, मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। आप सभी महानुभाव यहाँ पधारे, इस कार्य की शोभा बढ़ाई, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया, रोशन किया। मीडिया के सभी मेरे साथियों को भी आभार व्यक्त करता हूँ और आप सभी से निवेदन है कि लंच तैयार है, लंच करके पधारें। धन्यवाद। थैंक यू सर। अब हम अपने कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पे आ चुके हैं। सभी से निवेदन है कि राष्ट्रीय गान के लिए अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलति तरंग। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा। जन गण मंगल नायक जय हे, भारत भाग्य विधाता। जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 जय। थैंक यू। सभी उपस्थित अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद तथा आप सबसे निवेदन है कि कृपया लंच ज्वाइन करें। थैंक यू वेरी मच।